Hello everyone, welcome to C++ session 2 by TechShuttle BVP Hack Club. I hope you all are safe and well. So the format for today's session will be same as our first session. We'll be taking the doubts in the end, and if you have any other doubt before that, you can just raise your hand and we'll get back to you. Alright, I'll just repeat some guidelines. We'll be having a quiz at the end, just like our first session on Kahoot. The scores will be noted for finding out the best performer at the end of the series, and they will be awarded with some certificates and perks. So before we begin with today's session, I would just like to know if you have any other doubt regarding the session or any concept that was taught in our first session. Some of you had a problem with the IDE VS Code. We tried to solve out for as many of you who joined the meet today. But if you are still facing any other problem, for today, you can use any other online IDE. Just go to your browser and search for C++ online IDE. You can work there for today, and we'll solve your problems in some other next meet, maybe tomorrow or whenever you guys want to. But we can't do that right now as that's really time consuming. So other than that, if you have any other doubt, you guys can ask right now. Any doubt, you can raise your hand. Shall we begin? Just raise your hand so we can start. A few more hands I want to see. Yeah, okay. All right, great. The topics that will be covered today are data types and variables, valid range of data types, input output, manipulators, and data operators. Okay, so let's start with data types and variables. First of all, let us know what is a variable. A variable is actually a name that is given to a memory location, memory address. Suppose in the memory we have a value 20. So that 20 value will be stored in the RAM, and the place where it will be stored, that place has to be given a name, and that name is known as variable. If we, for example, if we consider int a equals to 25, here int is the data type, a is the variable name, and 25 is the value that is stored in a. So now let's know how to declare a variable. Suppose we have to declare a single variable. So what we have to do, first of all, we have to write the type of the data, means data type, and then the variable name. Int a. यहाँ पे हमने एक वेरिएबल को डिक्लेयर करा है a, और इसका जो डेटा टाइप है वो int है. एंड अगर हमें एक से ज्यादा वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो हम उसको डिक्लेयर करने के लिए डाटा टाइप a वेरिएबल 1 2 3 ऐसे हम डिक्लेयर करते हैं. एंड तो फिर int a b c, तो यहाँ पे हमारे पास तीन वेरिएबल्स हैं a b c, और उसका जो डेटा टाइप है वो int है. तो हमने जो तीनों वेरिएबल हैं उनको एक साथ डिक्लेयर करा है. अब इसमें यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हम जो वेरिएबल एज है, जिसका नाम एज है, हम उसको डिक्लेयर कर दें. इंट एज इक्वल्स टू 20. तो इंट जो है यहाँ पे वो डेटा टाइप है, एज जो है वो वेरिएबल नेम है, 20 जो है वो वैल्यू स्टोर्ड है एज के अंदर. यहाँ पे हम देख रहे हैं जो रैम के अंदर एक ब्लॉक बना हुआ है, उस ब्लॉक के अंदर 20 स्टोर्ड है, और उस 20 जहाँ पे जिस लोकेशन पे वो स्टोर्ड है उसकी जो नेम है वो वेरिएबल नेम होता है, वो एज है. Now let us know about data types. Data types वो होते हैं जो हमें बताते हैं कि डेटा किस टाइप का है, किस टाइप की वैल्यू डेटा में स्टोर हो सकती है.
लाइक हमें इंटीजर वैल्यू डालनी है या फिर डेसिमल डालनी है, हमें अगर डेसिमल डालनी है तो उसके लिए अलग डेटा टाइप होता है। तो डेटा टाइप 3 टाइप के होते हैं, प्रिमिटिव, डिराइव्ड और एब्स्ट्रैक्ट। डेटा टाइप्स 3 टाइप के होते हैं, प्राइमरी या फिर प्रिमिटिव, डिराइव्ड और यूजर डिफाइंड या फिर एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। प्राइमरी के अंदर आता है इंटीजर, कैरेक्टर, बूलियन, फ्लोटिंग पॉइंट, डबल फ्लोटिंग पॉइंट, वॉइड और वाइड कैरेक्टर। और डिराइव्ड के अंदर फंक्शन, एरे, पॉइंटर, यूजर डिफाइंड के अंदर क्लास, स्ट्रक्चर वगैरह ये सब आते हैं। और हम डिराइव्ड और यूजर डिफाइंड जो है वो नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, बट आज जो हमें फोकस करना है वो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स पे करना है। पहले प्रिमिटिव डेटा टाइप वो होते हैं जो हमारे जो कंपाइलर में बिल्ट इन या फिर प्री डिफाइंड होते हैं, पहले से ही होते हैं, और जो यूजर है उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, डायरेक्टली यूज कर सकता है। जैसे इंटीजर के लिए इंट, कैरेक्टर, बूलियन वगैरह। डिराइव डेटा टाइप्स वो वाले डेटा टाइप्स होते हैं जो प्रिमिटिव से हम डिराइव करते हैं, प्रिमिटिव या प्राइमरी डेटा टाइप से डिराइव करके हम उसको यूज करते हैं अपने फंक्शन, अपने प्रोग्राम में। जैसे कि फंक्शन, एरे, पॉइंटर। फंक्शंस, एरेज, पॉइंटर ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं जो हम आगे वाले आने वाले सेशंस में पढ़ेंगे। एब्स्ट्रैक्ट या फिर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स, ये वो वाले डेटा टाइप्स हैं जो यूजर अपने आप डिफाइन करता है, जिसमें यूजर अपने आप स्पेसिफाई करता है कि उसको किस टाइप का डेटा टाइप चाहिए, किस टाइप का जो पूरा उसका ब्लॉक है उसके अंदर उसको क्या क्या चाहिए वो यूजर अपने आप डिफाइन करेगा। लाइक क्लास, स्ट्रक्चर, यूनियन, एनुमरेशन, टाइप, डेफ। तो फिर इसमें क्या होता है कि अगर हम क्लास बनाते हैं, कोई क्लास बुक, तो हम उसके अंदर जो भी डिटेल्स आते हैं वो बुक के आते हैं, तो फिर जो वो उसका डेटा टाइप है वो क्लास हो गया, क्योंकि उसके अंदर हम सारी बुक्स वाली डिटेल्स डालेंगे। अब जो हमारे प्राइमरी डेटा टाइप्स मतलब जो बेसिक डेटा टाइप्स होते हैं हम उनके बारे में देखते हैं। इंटीजर डेटा टाइप जो है वो एक इंटीजर वैल्यू को ही स्टोर करने देगा हमें। लाइक हमने पहले पढ़ा था इंट एज इक्वल्स टू 20, तो एज के अंदर जो है वो इंटीजर वैल्यू ही स्टोर होगी जो है 20। हम कोई और अगर हम चाहें कैरेक्टर वैल्यू को स्टोर कर दे तो वो हम कर नहीं पाएंगे। इंटीजर हमें यूज करने के लिए हमें कीवर्ड एक इंट यूज करना पड़ता है, और एक इंटीजर वैल्यू 4 बाइट्स रिक्वायर करते हैं मेमोरी में। कंपाइलर पे डिपेंडेंट होता है वैसे तो ये इंटीजर के लिए, कि कई कंपाइलर जो है वो 2 बाइट्स यूज करते हैं और कई 4 बाइट्स यूज करते हैं। और जो इंटीजर की रेंज है वो -21474 से लेके जो स्क्रीन पे जो दिख रही है वो इसकी रेंज होती है। अब कैरेक्टर डाटा टाइप हमें कैरेक्टर स्टोर करने के लिए काम आता है। लाइक ABC, ये जो कैरेक्टर्स है इनको स्टोर करने के लिए काम आता है, और इसलिए जो कीवर्ड यूज होता है वो कैर है। कैरेक्टर डाटा टाइप 1 बाइट रिक्वायर करता है मेमोरी में स्पेस, और इसकी जो रेंज है वो -128 से +127 है। बूलियन डाटा टाइप जो होता है वो हमें आइदर ट्रू या फिर फॉल्स या फिर 0 या फिर 1 लॉजिकल वैल्यूज, इसकी जो रेंज होती है वो 0 से 1 तक ही होती है। 0 स्टैंड करता है फॉल्स के लिए, 1 स्टैंड करता है ट्रू के लिए, और इसके लिए हम कीवर्ड यूज करते हैं बूल। फ्लोटिंग पॉइंट, जो फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप है वो डेसिमल वैल्यूज वगैरह स्टोर करने के लिए काम आता है। इसके लिए हम कीवर्ड फ्लोट यूज करते हैं, और इस जो ये मेमोरी रिक्वायर करते हैं वो 4 बाइट्स करता है। फ्लोट जो है उसमें हम 7 डेसिमल वैल्यूज इनपुट कर सकते हैं। अब डबल फ्लोटिंग पॉइंट के लिए हम कीवर्ड डबल यूज करते हैं, और इसमें क्या होता है कि इसमें भी हम डेसिमल वैल्यूज ही स्टोर करते हैं, बट हमारे पास इसमें एडवांटेज ये है कि जो डेसिमल पॉइंट के बाद जितने नंबर्स आएंगे वो हमारे पास फ्लोट से ज्यादा होंगे। इसमें हम 15 डिजिट्स जो है वो स्टोर कर सकते हैं डेसिमल के बाद, और क्योंकि डबल है तो इसकी मेमोरी भी जो फ्लोट है उससे डबल होती है। फ्लोट की 4 थी तो इसकी 8 बाइट्स है। वॉइड वो वाला डेटा टाइप है जो हमें कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता। अगर कोई हम फंक्शन बनाते हैं, हम फंक्शन के आगे वॉइड लिख देते हैं तो वो फंक्शन जो है वो नल वैल्यू रिटर्न करेगा। वाइड कैरेक्टर जो है वो एक कैरेक्टर डेटा टाइप का इंक्रीज वर्जन है, मतलब कि हम इसमें इसका जो साइज होता है वो 8 बिट डाटा टाइप होता है, और ये कैरेक्टर से बड़े वाला डेटा टाइप है, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए WCHAR_T ये यूज होता है, और इसकी जो स्पेस है वो या तो 2 या फिर 4 बाइट्स होती है।
Now let us know about data types modifiers. Data type modifiers जो होते हैं वो हमें जो हमारे पास ऑलरेडी बिल्ट इन डेटा टाइप्स हमारे पास होते हैं लाइक इंटीजर कैर वगैरह ये सब जो होते हैं उनकी लेंथ को मॉडिफाई करने के लिए काम आता है एज पर आर नीड। मॉडिफाई C++ में 4 टाइप्स के होते हैं, साइंड, अनसाइंड, लॉन्ग और शॉर्ट। तो साइंड और अनसाइंड जो है वो उनमें डिफरेंस क्या है? जो साइंड डेटा टाइप्स होते हैं उसमें हम नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। लाइक हमने कैर का देखा था, कैर की जो रेंज थी वो -128 से +127 तक थी। तो साइंड जो है वो -128 से 1+127 तक स्टोर करेगा क्योंकि इसमें नेगेटिव भी आएंगे और पॉजिटिव भी आएंगे। बट अगर हम अनसाइंड कैर कर देते हैं तो इसमें हम केवल पॉजिटिव वैल्यू स्टोर कर सकते हैं और इसकी जो रेंज होगी वो 0 से 255 तक होगी। ये एक टेबल है जिसमें हमने सारे डेटा टाइप्स लिखे हैं और उसकी जो साइज है और रेंज है। लाइक अगर हम इसमें अनसाइंड और साइंड का देखें, बाय डिफॉल्ट साइंड होते हैं सारे डाटा टाइप्स। लाइक यहाँ पे ये जो थर्ड वाला अनसाइंड इंट है, इंट की जो साइज होता है वो 4 बाइट्स होता है और ये स्टोर कर सकता है 0 से लेके 4294, मतलब 0 से लेके 4 बिलियन तक ये स्टोर करेगा। और जो इंट है ये साइंड इंट या फिर नॉर्मल इंट दोनों एक ही बात है। इसका साइज 4 बाइट्स है और ये -2 बिलियन से लेके +2 बिलियन तक स्टोर कर सकते हैं। इन दोनों की जो साइज है वो तो सेम ही है, दोनों 4 बिलियन ही स्टोर कर रहे हैं। ये -2 बिलियन से +2 बिलियन तक और 0 से 4 बिलियन तक, तो दोनों जो नंबर ऑफ करेक्टर्स वगैरह हैं वो तो सेम ही स्टोर कर रहा है। बट बात ये कि वो केवल पॉजिटिव स्टोर करेगा और ये दोनों नेगेटिव प्लस पॉजिटिव दोनों स्टोर कर सकते हैं। ये जो ये टेबल है ये हमें याद करने की एज सच कोई ज़रूरत है नहीं, बट हमें फिर भी पता होना चाहिए कि क्या कहाँ पे कितना स्टोर हो सकता है। नहीं तो लाइक अगर हम कोई भी प्रोग्राम लिख रहे हैं, कैर का लिख रहे हैं, अगर हमने कहीं पे कैर यूज करा और कैर पे हमने कोई वेरिएबल बनाया कैर a इक्वल्स टू 259 दे दिया, बट 259 तो कैर की रेंज में आते ही नहीं है, तो वो एरर जनरेट कर देगा, हमें आउटपुट नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमें ये रेंज जो है वो पता होनी चाहिए कि एक डेटा टाइप कितनी रेंज ले सकता है। ये एक प्रोग्राम है, इसमें हमने सारे जो डेटा टाइप्स हैं कैर इंट, शॉर्ट इंट, लॉन्ग इंट, इन सबको हमने एज प्रोग्राम में लिखा और इन सबका साइज हमने आउटपुट करवाया। देखो आउटपुट करने के बाद आया साइज ऑफ कैर इक्वल्स टू 1 बाइट, मतलब जो कैर का साइज होता है वो 1 बाइट होता है। ये है साइज ऑफ इंट, ये जैसे हम लिखते हैं ये एक साइज ऑफ जो है वो एक ऑपरेटर है जो हमें किसी भी डेटा टाइप का साइज बता देता है। जैसे हमें अगर एरे का कोई एरे भी एक डेटा टाइप होता है, डिराइव्ड डेटा टाइप जो होता है बताया था, तो अगर हम साइज ऑफ एरे लिख देंगे तो फिर हमें उसका साइज मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पे सबके साइज प्रिंट करवाए। साइज ऑफ कैर इज 1 बाइट, साइज ऑफ इंट इज 4 बाइट्स, शॉर्ट इंट इज 2 बाइट्स, लॉन्ग इंट इज 4 बाइट्स, साइंड लॉन्ग इंट इज 4 बाइट्स, अनसाइंड लॉन्ग इंट इज 4 बाइट्स। साइंड और अनसाइंड के बीच में भी डिफरेंस बताया था। ये प्रोग्राम आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, आप एक बार इसको अपने उस पर ट्राई करके देखना कि तुम्हें हर डेटा टाइप का साइज पता चल रहा है या नहीं। अपने एडिटर खोलो, अपना आईडी खोलो और उस पर बस कैरेक्टर जो डेटा टाइप है उसका तुम आउटपुट करके देखो एक बार, बस इतना करना है। साइज ऑफ कैर अपने आईडी पे टाइप करो इसको। हो जाए तो एक बार हैंड रेस कर देना। मयंक हो गया?
ESP user. Nice. जयंत हो गया? डाउट था मुझे एक, इसमें एंड क्या? वन क्या है? इसमें एंड वन क्या है? ये एंड वन नहीं, एंड एल है। ये अभी आगे वाली जो okay. स्लाइड्स है उसमें आएगा। तो फिर ये क्या करेगा, जो आउटपुट है वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कर देता है। ये हमने \n पढ़ा था ना लास्ट सेशन में, वैसे ही एंड एल भी होता है। एंड लाइन, इट मींस एंड लाइन, तो वो वाली लाइन जो है वो उसको एंड करके नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। ओके, हो गया, थैंक यू। नाइस। गौरव, गौतम, नाइस। किसी को कोई डाउट है? हाँ, मुझे एक डाउट है। क्या? लॉन्ग इंट जो है वो ज़्यादा नंबर स्टोर करता है नॉर्मल इंट से, शॉर्ट इंट से, मतलब शॉर्ट इंट से नहीं, नॉर्मल इंट से, तो उसकी मेमोरी में डिफरेंस क्यों नहीं होता? दोनों 4 बाइट कैसे ऑक्यूपाई कर रहे हैं? लॉन्ग इंट क्योंकि इंटीजर का जो लॉन्ग इंट का जो साइज होता है वो 4 बाइट्स होता है, और जो शॉर्ट इंट होता है उसका जो साइज होता है वो 2 बाइट्स होता है। उनकी रेंज में भी डिफरेंस है। नहीं, नॉर्मल इंटीजर जैसे हम नॉर्मल इंट लिखेंगे और लॉन्ग इंट लिखेंगे, तो लॉन्ग इंट नॉर्मल इंट से ज़्यादा नंबर स्टोर कर पाता है, जैसे आपने बताया, तो साइज में क्यों डिफरेंस नहीं होता? गौरव, एक्चुअली C++ के एक पुराने वर्जन्स में ये चीज़ होती थी कि लाइक इंट 2 बाइट्स का होता था और लॉन्ग इंट आपका 4 बाइट्स का होता था और लॉन्ग इंट 8 बाइट्स का होता था। लेकिन फिर जैसे जैसे डेवलपमेंट होती रही तो फिर डेवलपर्स को फील हुआ कि लाइक इंट का साइज़ बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि बार बार अगर हमें ज़्यादा, पहले सिर्फ 32,000 तक हम इंट को कर पाते थे, लेकिन फिर कोडर्स को फील हुआ कि हमें ज़्यादा रेंज की ज़रूरत है, तो उन्होंने लॉन्ग इंट को इंट के बराबर कर दिया। सो इट्स जस्ट फैक्ट नाउ। होप योर डाउट इज क्लियर। ठीक। I have a doubt. Yes. The long int वो एंडल और स्लैश एन में मतलब डिफरेंस क्या होता है? वैसे मतलब हम दो क्यों यूज करते हैं, दोनों का पर्पस तो एक ही होता है, लाइन, एक लाइन लीव करना। अच्छा, हाँ, दोनों का। गौतम, ये ना मैं ज़रूर, ये डाउट लाइक काफ़ी अच्छा है, रियली गुड नोटिस किया तुमने, और मैं बताना भी चाहूँगा, लेकिन अभी तुम्हारे लिए थोड़ा एडवांस हो जाएगा। तो आई सजेस्ट तुम इसे होमवर्क लो और घर से सर्च करके आना, तो और हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है? ये तुम सबके दोनों लिए का एज एक्चुअली दोनों का पर्पस तो सेम ही होता है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है बस। डिफरेंस यूज करने के तरीके में आता है ना, एक को हम अपने यार लिसन इट्स जस्ट दैट कि जो /n होता है वो एक एस्केप कैरेक्टर है, तो वो बस आपको न्यू लाइन में लेके जाएगा, वेयरएज जो एंडल है उसका एक और पर्पस होता है जो हम आपको मतलब यू जस्ट गो एंड सर्च इट आउट, नहीं तो हम बाद में बता देंगे। जस्ट होल्ड ऑन टू दिस डाउट, ये अभी कवर किया जाए। हाँ, ये आगे वाली स्लाइड्स में है ये टॉपिक, तो आपका डाउट जो है वो वहाँ पे क्लियर कर दिया जाएगा। ओके दी। ये सबने ये कोड ट्राई करके देखा, साइज ऑफ कैर 1 बाइट? अगर अभी नहीं करा तो कर लिया। हाँ, गुड। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। Okay, so now we'll discuss about input and output. Name से काफी clear है, we have been hearing these terms, but let's just see कि computer world में exactly क्या मतलब है इसका। कल हमने देखा था we printed out a statement hello world using a keyword called cout.
That keyword cout is a part of a header file called iostream, which is nothing but input output stream. Stream is basically a sequence of bytes. ये जो process होता है input and output का, it is done in the form of a sequence of bytes. इनपुट आउटपुट अगर मैं बात करूं, बेसिकली हमने एक प्रोग्राम बनाया, तो उस प्रोग्राम का बेसिक पर्पस इज टू इंटरैक्ट विद द यूज़र. सपोज यूज़र के पास एक डेटा है जो वो चाहता है कि वो उसे मैनिपुलेट करे, प्रोसेस करे एंड एक रिजल्टेंट आउटपुट मुझे दे दे, स्क्रीन पे मेरी डिस्प्ले हो जाए. सो दैट स्क्रीन पे डिस्प्ले होने वाला पार्ट रिजल्ट के बाद इज कॉल्ड आउटपुट, और जो डेटा यूज़र दे रहा है मेन मेमोरी को प्रोसेस करने के लिए, दैट पार्ट इज कॉल्ड इनपुट. सो जब वो फ्लो ऑफ बाइट्स, दिस सीक्वेंस ऑफ बाइट्स, व्हेन द स्ट्रीम फ्लोज फ्रॉम द डिवाइस टूवर्ड्स द मेन मेमोरी, जब मैंने अपने कीबोर्ड से अपने डिवाइस से कुछ इनपुट किया, मेन मेमोरी में भेजा उसे, दैट्स कॉल्ड इनपुट स्ट्रीम. मेन मेमोरी में गया, प्रोसेस हुआ, रिजल्ट आया, एंड देन वो उस मेन मेमोरी से वापस मेरे डिवाइस के पास आया, मेरी स्क्रीन पे मुझे दिखा, दैट इज कॉल्ड आउटपुट स्ट्रीम. इससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं इस वक्त. बट अदर देन IO stream, there are other header files as well which are used for this purpose of input and output. To name a few, I would say IO manip, which stands for input output manipulator. इसका output data से कुछ connection नहीं है, it just deals with the formatting of output. एडिट करना है मेनली मुझे, अगर कुछ मुझे बताना है अपने सिस्टम को कि जो आउटपुट है वो इस तरह से प्लेस करो, गैप दे दो या लाइन छोड़ दो या कुछ भी कर दो, दैट इज कॉल्ड मैनिपुलेटर्स. बेसिकली फॉर्मेट करने के लिए एक हेडर फाइल होती है एफ स्ट्रीम, विच इज बेसिकली इट स्टैंड्स फॉर फाइल स्ट्रीम. इसमें क्या होता है, सपोज यू हैव अ इनपुट इन सम फाइल, इन अ txt फाइल, नोटपैड में आपने एक इनपुट डाल दिया. नाउ यू डोंट फील लाइक टाइपिंग दैट इनपुट अगेन इन योर प्रोग्राम और यू नो कॉपिंग दैट इनपुट. तो आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्टली उस फाइल से इनपुट को इनपुट दे सकते हो अपने प्रोग्राम को. तो उस पर्पस एंड सिमिलरली जैसे ही जब वो रिजल्ट आएगा, आउटपुट आएगा, तो वो हो सकता है उसी एक फाइल में स्टोर भी किया जा सकता है. रादर देन डिस्प्लेइंग इट ऑन योर स्क्रीन, वो एक फाइल में स्टोर हो जाएगा, आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हो वो फाइल. उस पर्पस के लिए एफ स्ट्रीम यूज़ होता है, बट अभी इस कोर्स के बहुत बाहर है ये, सो हम डिस्कस नहीं करेंगे एफ स्ट्रीम को. IO स्ट्रीम, जैसा मैंने कहा, सी आउट और सी इन दोनों IO स्ट्रीम के कीवर्ड्स हैं, हम यूज़ करते हैं. मोस्ट कॉमनली यही यूज़ किया जाता है. देर आर अदर कीवर्ड्स बट हम यही डिस्कस करेंगे अभी. सी आउट फॉर आउटपुट, सी इन फॉर इनपुट. इट्स बेसिकली कंसोल आउटपुट एंड कंसोल इनपुट. सिंटैक्स हमने एक्चुअली इसका देखा हुआ है, इफ यू रिमेंबर, सी आउट एंड देन ये दो लेस देन के साइन लगाते हैं हम, विच इज़ नथिंग बट एन इंसर्शन ऑपरेटर. ये सिंबल हम आगे ऑपरेटर्स में भी देखेंगे, इसे कुछ और भी कहा जाता है, बट अभी के लिए इनपुट आउटपुट में वी आर गोइंग टू कॉल दिस इंसर्शन ऑपरेटर. सी आउट आया, इंसर्शन ऑपरेटर आया, एंड देन वी टाइप द स्टफ दैट वी वांट टू प्रिंट. सिमिलरली सी इन में सी इन का कीवर्ड यूज करेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, ये दो ग्रेटर देन के सिंबल जो यहाँ पे दिख रहे हैं हमें, एंड देन हम टाइप करेंगे हमें इनपुट लेना कहाँ है, जो इनपुट हम ले रहे हैं यूजर से उसको कहाँ स्टोर करें या किस वेरिएबल में जाएगा वो टाइप कर देते हैं. उससे हमारा आउटपुट एंड इनपुट हो जाता है. इसको हम अभी अपने आईडीज पे ट्राई करेंगे. लेट्स एक्चुअली डू इट राइट नाउ. तो ये मैं जो ऑलरेडी कोड था मैं इसको कमेंट आउट कर रही हूँ. आप सभी साथ साथ ट्राई कर सकते हैं. स्क्रीन को स्प्लिट कर लो. ओके, तो कुछ प्रिंट करवाते हैं पहले. ये हमने कल किया था, बट वी सी दिस अगेन कि एक्चुअली हुआ क्या. We have the output. So basically जैसे हमने IO मैंने अभी हटा देते हैं हम. ओके, ये IO स्ट्रीम हेडर फाइल है, हमने इसको इंक्लूड कर लिया. अब C++ को पता है कि सी आउट क्या है, सी आउट का मतलब क्या है, वो कीवर्ड क्यों है. कंसोल आउटपुट, ये हमारा ऑपरेटर आ गया, इंसर्शन ऑपरेटर जिसे हम कहते हैं. I'll write it here also. और फिर हमने यहाँ पे डबल कोट्स का यूज़ किया. डबल कोट से बेसिकली मतलब है इसके अंदर हम जो भी लिख देंगे वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा. हमारे सिस्टम को कोई लेना देना नहीं है कि उसके अंदर क्या लिखा है,
वो उस वर्ड का मतलब जानता है नहीं जानता, उसे उसको कुछ प्रोसेस नहीं करना, उसे एज इट इज उसे प्रिंट कर देना। इसके अंदर मैं कुछ भी लिख सकती हूँ, वो एज इट इज प्रिंट होगा, एरर नहीं आएगा। ठीक है, अब देखते हैं बिना डबल कोट्स का यूज कहाँ होता है। लेट्स सी, सपोज मैंने यहाँ पे एक, अभी हमने देखा था वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं। सपोज मुझे एक इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी है, तो मैं डेटा टाइप लिख दूंगी यहाँ पे इंट, उस वेरिएबल का नाम जहाँ पे वो स्टोर होगा, ये मैंने ए कर दिया, और ये मैंने सिर्फ डिक्लेयर किया। यहाँ पे मैं इसको वैल्यू नहीं दे रही इस वक्त, मुझे वैल्यू यूजर से लेनी है। तो ये मैंने सीन कीवर्ड लिखा जो इनपुट के लिए होता है। जस्ट अ सेकंड, ओके। अब हम यहाँ यूज करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, यूजर से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं हम कुछ। अब उसके बाद द थिंग इज, यूजर तो इनपुट दे देगा बट सिस्टम को नहीं पता उसके साथ क्या करना है, तो हम उसे बताएंगे कि वो वैल्यू लो, और जो ए नाम का एक वेरिएबल है मेमोरी में, इंट डेटा टाइप का, इंट वैल्यू जो स्टोर करता है, वहाँ पे जाके उसे स्टोर कर दो। हो गया, तो वैल्यू तो ले ली। अब सपोज मुझे वो वैल्यू प्रिंट भी करवानी है, तो मैं दोबारा सी आउट यूज़ करूँगी, और मैंने कोड्स यूज़ करते हैं हम टाइप करते वक्त। बट अगर अब मैंने यहाँ पे ए लिखा तो वो आउटपुट नहीं आएगा जो हम चाहते हैं, क्योंकि अब ये एक कैरेक्टर है एक, वो इसे एज इट इज़ प्रिंट कर देगा। जैसा कि मैंने कहा, कोड्स के अंदर जो लिख दिया वो एज इट इज़ आ जाएगा। और उसी के साथ मैं यहाँ पे एक लाइन दूंगी, एंड अब हम ट्राई करते हैं इसको बिना कोटेशंस के। तो एक बार रन करते हैं। ये कोड रुक गया, एक्चुअली मैंने ये सीन ए किया हुआ है, तो मुझे एक वैल्यू देनी पड़ेगी सिस्टम को। सपोज मैंने 8 दिया यहाँ पे, गलत जगह प्रिंट हो, सॉरी। वेरी सॉरी, कुछ कर्सर में इशू था। ओके, यहाँ मैंने एक वैल्यू दी, सपोज मैंने 8 दिया, एंटर किया। देखो अब सिस्टम के पास ए की वैल्यू आ गई 8, और मैं चाहती थी कि वो यहाँ से प्रिंट हो, बट वो नहीं हुआ क्योंकि यहाँ मैंने ए को कोड्स के अंदर लिखा है। अब सिस्टम कोशिश ही नहीं करेगा देखने की कि क्या कोई ए मेमोरी में कुछ ए करके है क्या, कुछ कोई नहीं देखेगा, वो सीधा उसने ए प्रिंट कर दिया। बट नेक्स्ट पे मैंने बिना कोड्स के लिखा, अब वो समझेगा कि ए एक्चुअली क्या चाहता है यूजर। उसने देखा मेमोरी में देयर इज अ वेरिएबल कॉल्ड ए, और उसके अंदर जो वैल्यू थी जो हमने यूजर से ही ली थी इनफैक्ट, और वो 8 यहाँ पे प्रिंट हो गया। ओके, ये तो बेसिक इनपुट आउटपुट है। अब सपोज हमें कभी कभी मल्टीपल इनपुट्स और आउटपुट लेने पड़ते हैं, सो क्या हम बार बार सी आउट लिखेंगे, कोड उसी से भर जाएगा। जैसा मैंने कहा, इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ बाइट्स, तो हम एक सीक्वेंस की तरह इसे लिख सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल और बनाया बी, अब मुझे ए के साथ साथ बी लेना है। अब मैं इसको ऐसे भी कर सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बिल्कुल सही चलेगा, बट हम बार बार लिखना नहीं चाहते। तो हम यहीं पे क्या करेंगे, सीन कीवर्ड ऑलरेडी है, हम कहेंगे हमें दोबारा एक और स्ट्रीम चलानी है, ये दोबारा ये वाला अपना एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर लगेगा, और हम यहाँ पे लिख देंगे बी। अब ये दोनों इनपुट हो रहे हैं। इससे पहले मैं एक काम करती हूँ, इसको थोड़ा सा इंटरैक्टिव बनाने के लिए हम पहले प्रिंट करा देते हैं, एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। सीन करवाएंगे दोनों को, और फिर इसको अब हम हटा देते हैं। अब मुझे ये दोनों ही वैल्यूज़ चाहिए भी अपने साथ बाहर, ए और बी की वैल्यू मैं देखना चाहती हूँ। तो मैं दोबारा सी आउट भी लिख सकती हूँ, बट वो नहीं करेंगे, हम यहीं पे एक स्पेस देंगे, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बी। मुझे बीच में स्पेस भी देना है इनफैक्ट, तो मैं एक और बार लिखूँगी, और ये मैं \n लगा दूँगी यहाँ पे। तो इससे मेरी लाइन आ गई है अब, और उसके बाद बी की वैल्यू देखते हैं कैसे काम करेगा। ओके, अब ये मुझसे ए और बी की वैल्यू मांग रहा है, मैंने ए की वैल्यू दे दी इसको, सॉरी यार, तो मैंने कोड में, हाँ ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे ए और बी की वैल्यू देती हूँ। ए की वैल्यू मैंने दे दी 10, बी की वैल्यू मैंने दे दी 5।
और ये मुझे बी की वैल्यू यहाँ पे दिखा रहा है। एक ही लाइन में हमने कोड लिख लिया, लाइन दे भी दी बीच में, मल्टीपल आउटपुट्स दिए, मल्टीपल इनपुट्स दिए। इस तरह से हम कुछ भी इनपुट आउटपुट बेसिकली करवा सकते हैं। कोई डाउट इस टॉपिक पे किसी को कुछ भी? सबने ट्राई किया ये? एक बार हैंड रेस कर दो जो ट्राई करके आए हैं। अच्छे से देखो, इस पे क्विज भी होगी अभी, क्वेश्चन इस पे बेस्ड होंगे। नाइस नाइस। किसी को कोई डाउट? आगे बढ़ेंगे अब हम। ठीक है, यू कैन लोअर डाउन योर हैंड्स। जयंत कोई डाउट है? नहीं दीदी। ठीक है। मयंक? नो दीदी। ओके ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। मैनिपुलेटर्स, मैंने अभी बताया था मैनिपुलेटर्स यूज होते हैं फॉर्मेटिंग के लिए, किस तरह से आउटपुट किया जा रहा है। तो मैनिपुलेटर्स के लिए भी हमारे पास अलग अलग हेडर फाइल्स हैं, कुछ आईओ स्ट्रीम में ही होते हैं, जैसे हमारा एंड एल जिसकी अभी बात हुई थी। एंड लाइन नेक्स्ट लाइन से शुरू कर देता है, ये आईओ स्ट्रीम से ही हो जाता है। इसके लिए हमें अलग से कोई हेडर फाइल डालने की ज़रूरत नहीं है, आपने अभी यूज़ करते भी देखा है इससे पिछले कोड में। अब कुछ डाउट उठे थे यहाँ पे कि इट इज़ सेम एज \n। हमें जो आउटपुट दिखता है अपनी स्क्रीन पे वो सेम है, \n और एंड एल दोनों सेम काम करते हैं, बट जो काम मशीन में हो रहा है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है ये कि जो \n है वो थोड़ा सा फास्ट है। वो फास्ट इसलिए क्योंकि वो सिर्फ नेक्स्ट लाइन में जाता है, और एंड एल जो है वो बफर भी क्लियर कर देता है, हमारा फ्लश कर देता है एक तरह से उसे। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। हमारे यूजेज में कुछ फ़र्क नहीं आएगा, तुम दोनों यूज़ करो, कुछ दोनों ही इनफैक्ट मिक्स करके यूज़ करो, दोनों की आदत होनी चाहिए। तो ये डिफरेंस है। किसी को डाउट था आई थिंक \n और एंड एल में? अभी भी है? अब बफर क्या है वो मैं समझाने जाऊंगी तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, अभी के लिए उसकी ज़रूरत नहीं है, बट अगर कोई तुमसे पूछे तो तुम ऐसे कह सकते हो, इट्स फाइन फॉर नाउ। डाउट क्लियर हुआ उनका? आई एम वेटिंग। बताओ और डिस्कस करना है अगर इस पे तो। पहले डाउट था ना किसी को? नहीं, कंटिन्यू करो। ओके नाइस। ठीक है, इसके अलावा हमारे कुछ मैनिपुलेटर्स होते हैं जो आईओ मैनिप हेडर फाइल में होते हैं, उसके लिए हमें यह फाइल इंक्लूड करनी होगी। काफ़ी सारे होते हैं बट हम सारे डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे, कुछ ज़रूरत भी नहीं है उनकी। जो मेजरली यूज़ किए जाते हैं वो है कुछ सेट डब्ल्यू, सेट प्रिसीजन, सेट बेस। सेट डब्ल्यू आपकी विड्थ को सेट कर देता है। सपोज मैंने कुछ आउटपुट कराया, उसमें 2 कैरेक्टर्स हैं बट मैंने उसकी विड्थ 4 सेट की है, तो अब वो प्रिंट करने से पहले 2 ब्लैंक स्पेसेस देगा और फिर वो 2 कैरेक्टर्स प्रिंट करेगा। अभी हम ट्राई करते हैं इसको। सेट प्रिसीजन से हम डेसिमल में जो हमारा डेसिमल वैल्यू है, सपोज 1.2224 समथिंग, अगर मैं इट कैन बी क्वाइट लॉन्ग, इतने बड़े की हमें कभी ज़रूरत होती नहीं है, तो हम उसमें सेट प्रिसीजन यूज़ कर सकते हैं कि हमें अप टू 2 डेसिमल्स चाहिए, अप टू 3 डेसिमल्स चाहिए। सेट बेस हमने कल देखा था, अलग अलग नंबर सिस्टम्स होते हैं, अलग अलग बेस होते हैं, तो हम इसकी मदद से किसी भी नंबर का बेस चेंज कर सकते हैं। सपोज मेरे पास एक डेसिमल है 100, मैंने उसका बेस सेट कर दिया 8, तो वो मुझे 100 की ऑक्टा रिप्रेजेंटेशन दिखाएगा। कूल। तो इसको हम एक बार देख लेते हैं, एक बार फटाफट से एडिटर में अपने आईडी में। मैं एक कोड को कमेंट आउट कर रही हूँ दोबारा। सपोज मैंने दोबारा 2 वेरिएबल्स बना दिए, इंट a इज इक्वल टू 45 कॉमा, सॉरी b इज इक्वल टू, मैंने बड़ा सा नंबर ले लिया। ओके, अब मैं ये सी आउट करवा रही हूँ। देखो अब यहाँ मैंने एंड एल यूज़ कर लिया, ठीक है। बी सारा से एंड एल दे देते हैं, ठीक है। अब इसको एक बार इसको देखते हैं सेट डब्ल्यू के साथ, ठीक है। मैं ए से पहले क्या कर रही हूँ, ए और बी दोनों के पहले इनफैक्ट
सेट डब्ल्यू आईओ मैनेप में यूज करके मैंने इनकी विड्थ सेट कर दी दोनों की 4। ठीक है, अभी तुम्हें यहाँ सेट डब्ल्यू के पीछे एक रेड लाइन दिख रही है क्योंकि मैंने आईओ मैनेप को इंक्लूड नहीं किया है। कर ले। ठीक है, अब इसको रन करते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है। ये देखो, ये तो हमारा सिंपल तरीके से है 45 एंड 1200 एकदम सही है, कुछ गलत नहीं है इसमें। बट हमें नंबर्स को देखने की आदत होती है, यूनिट के नीचे यूनिट, 10th प्लेस के नीचे 10th, 100 के नीचे 100, अच्छा लगता है थोड़ा सा। ये तो छोटे नंबर्स हैं, बहुत बड़े नंबर्स हो तो वो थोड़ा वियर्ड लगेगा। अब नीचे तुम देखोगे, देखो कितने सही तरीके से आ रहा है, एकदम यूनिट के नीचे यूनिट, 10th के नीचे 10th। सपोज तुम्हें कुछ बड़ी बिलिंग प्रोसेस दिखाना है, बहुत सारे बड़े बड़े नंबर है, नीचे तुम्हें इसका टोटल दिखाना है, तो वो इस तरीके से अच्छा नहीं लगेगा, समझ भी नहीं आएगा शायद। बट ऐसे ये बेटर लगेगा, वही रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, कोई लॉजिक वॉजिक नहीं है इसमें। बट ठीक है, एक फंक्शन है C++ का, हमें पता होना चाहिए। ठीक है, फटाफट से अगला देखते हैं। मैंने दोबारा कमेंट आउट कर दिया इसे। अब हम सेट बेस देख लेते हैं, सी आउट। अब मुझे एक नंबर की हेक्सा रिप्रेजेंटेशन चाहिए। हेक्सा रिप्रेजेंटेशन का बेस 16 होता है, हमने कल सीखा है ये। ठीक है, आगे इसका देखते हैं। और मुझे नंबर है वो 100, मुझे 90 ले लेते हैं, ये चाहिए, और एंड एल भी दे दिया। अब इसको रन करते हैं। 5A which is the hexadecimal representation of 90। तो इस तरह से हम कन्वर्जन यूज कर सकते हैं। तो सेट बेस जो है बेसिकली हमारा 16 बेस पे काम करता है, 8 बेस पे काम करता है, 10 पे काम करता है। 10 इज नॉर्मल डेसिमल, फर्क नहीं पता चलेगा। 2 पे काम नहीं कर सकता, इससे बाइनरी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इट वोंट वर्क। ठीक है, सपोज मैंने ये 2 चलाया यहाँ पे, लॉजिकली ये बाइनरी में होना चाहिए, बट 2 पे ये वर्क नहीं करता, दोबारा 90 आ गया। और कुछ भी कर लो, सब पे चलेगा। कूल। नाउ लेट्स सी सेट प्रिसीजन। मैंने एक फ्लोट डिक्लेयर किया, a इज इक्वल टू 1.225648 बहुत बड़ा सा। मैं चाहती हूँ कि इसके जो डेसिमल है वो अप टू 2 प्लेस तक मिले मुझे। सो मैं क्या करूँगी, सी आउट, एक कीवर्ड और यूज करना पड़ता है विच इज फिक्स्ड, सेट प्रिसीजन, और अब मुझे a प्रिंट करवा दो। ठीक है, एक एंडर टैग, सॉरी ये देखो ऑपरेटर सही से नहीं डाला मैंने, है ना। ठीक है, पिछले का आउटपुट आ रहा है अभी। हाँ, ये आ गया 1.23। इसने हमें अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करके ये दे दिया। ठीक है, अब सपोज मैं यहाँ से फिक्स हटा दूँ, एक बार हटा देते हैं। हमने सेट प्रिसीजन पढ़ा है, हमें फिक्स का पता ही नहीं कुछ। अलग लाइन में करते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। इट्स स्टिल वर्किंग, बट कभी कभी क्या होता है, समटाइम्स एक एरर थ्रो करता है। आई डोंट नो ये क्यों नहीं कर रहा है इस वक्त। वो टोटल बिट्स को ले लेता है, डेसिमल से पहले जो हमारी कैरेक्टर्स हैं उसे भी इंक्लूड कर लेगा। सो ठीक है, हम फिक्स्ड लेंगे। और जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ, कूल। सो ये फिक्स एक कीवर्ड है जो हम सेट प्रिसीजन के साथ यूज करते हैं टू सेट द फिक्स द डेसिमल वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर फ्लोटिंग नंबर और डबल नंबर। ठीक है, तो ये हमारे सारे मैनिपुलेटर्स थे। ठीक है, एक टॉपिक, किसी को डाउट यहाँ पे अभी तक जितना भी किया हमने मैनिपुलेटर्स में, इनपुट आउटपुट में, कुछ भी?
एनीवन? सबको समझ आ गया? हैंड रेज कर लो कुछ लोग। हाँ बता दिया करो, ऐसे पता नहीं चलता कब आगे बढ़ना। ओके सो आगे बढ़ते हैं। डेटा ऑपरेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तुम्हारा जो भी प्रोग्रामिंग है उसके जो भी तुम्हारा सोर्स कोड है उसका लॉजिक जो होता है वो ऑपरेटर्स पे बेस्ड होता है। ऑपरेटर्स इज बेसिकली जो तुम्हारा डेटा प्रोसेस कर रहे हैं उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं और कुछ कुछ करके तुम्हें एक आउटपुट दे रहे हैं। ऑपरेटर्स किस पे ऑपरेट करते हैं? ऑपरेंड्स पे। ऑपरेंड क्या है ये देखो तुम इस एक्सप्रेशन में, c इज इक्वल टू a प्लस बी। ए प्लस बी में देखो प्लस जो है तुम्हारा एक ऑपरेटर है, हम करते आ रहे हैं ये बहुत पहले से है ना, मैथ्स में बचपन से कर रहे हैं। तो प्लस जो है हमारा एक ऑपरेटर है जो ऑपरेट कर रहा है ए और बी पे। ए और बी हमारे ऑपरेंड्स हैं यहाँ पे, ए और बी हैं ऑपरेंड्स, प्लस हैं ऑपरेटर। तो ये पूरा एक एक्सप्रेशन बना, एक वैल्यू आई जो सी में असाइन होगी, ये हमारा एक असाइनमेंट ऑपरेटर है इक्वल्स टू ए प्लस बी की एक वैल्यू आई सी वेरिएबल में असाइन होगी। तो इस तरह से ऑपरेटर्स काम करते हैं। ऑपरेटर्स काफ़ी सारे होते हैं, बिल्कुल मेन हम पढ़ेंगे जो है ना यूज़ होते ही हैं, रोज़ तुम कोड करोगे रोज़ यूज़ होंगे ये, ठीक है। तो बेसिकली 5 टाइप्स के होते हैं। अर्थमेटिक, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड परसेंट मॉड्यूलस, सॉरी मॉड्यूलस ये थोड़ा सा नया होगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। रिलेशनल जो कंपेयर करते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स आर ऑल्सो नोन एज कंपेरिजन ऑपरेटर्स, जो मैं बताएंगे क्या दो नंबर्स आपस में इक्वल हैं या एक नंबर बड़ा है या बड़ा या इक्वल है। यू नो ये सिंबल्स हमने देखे हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, सिर्फ ग्रेटर देन, सिर्फ लेस देन। ये थोड़ा नया है, ये कंपेयर करता है इफ द टू नंबर्स आर इक्वल और नॉट, ठीक है। अर्थमेटिक में मैंने बताया नहीं कि देर आर 2 टाइप्स, यूनरी ऑपरेटर्स एंड बाइनरी। इसको हम कोड में देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। एक्सक्यूज मी फॉर सेकंड, कोड में देखेंगे तो बेटर समझ आएगा। बट अभी के लिए इतना याद रखो कि यूनरी ऑपरेटर्स आर दोज जो एक ही ऑपरेंड यूज़ करते हैं, सिर्फ एक ही ऑपरेंड पे ऑपरेट करते हैं, एंड बाइनरी 2 पे। नेम से समझ में आ रहा है यूनरी बाइनरी, ठीक है। रिलेशनल कंपेयर करने के लिए लेट्स मूव अहेड। लॉजिकल ऑपरेटर्स, ये टर्म हमने सुनी हुई है लॉजिक गेट्स में, फिजिक्स में पढ़ के आए हैं हम सब, एंड गेट, नॉट गेट, और गेट, तो उसी से रिलेटेड आए, वो भी वर्ड में नाम में ही लॉजिक आ रहा है। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। कुछ डाउट है क्या किसी को? आई थिंक अनम्यूट हुआ कोई। तो ये भी एक एंड ऑपरेटर होता है, और ऑपरेटर होता है, नॉट ऑपरेटर होता है, हमें वो कॉन्सेप्ट पता है ऑलरेडी। एंड तब लाइक वो ट्रुथ टेबल हम पढ़ के आए हैं उन सब चीज़ों की, ठीक है। इसको कोड में देखते हैं फिर से, एज आई सेड ऑलवेज। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स जो हैं वो ट्रू या फॉल्स में ही वैल्यू रिटर्न करते हैं, एक बूलियन वैल्यू होती है। अभी हमने पढ़ा है बूलियन एक डेटा टाइप है, तो या तो वो ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा। 0 और 1 होता है, ट्रू को रिप्रेजेंट करता है 1 और फॉल्स को रिप्रेजेंट करता है 0, ठीक है। बिट वाइज ऑपरेटर्स, कल हमने बाइनरी में कन्वर्ट किए थे कुछ नंबर्स बिट्स में। तो बिट वाइज ऑपरेटर क्या करता है, जो ऑपरेंड्स हैं हमारे उनको पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, 1010, वो याद है ना, उसमें कन्वर्ट करेंगे, और फिर हर बिट पे वो ऑपरेट करेंगे, अलग से रिजल्ट आएगा, और फिर उसको वापस हमें डेसिमल में कन्वर्ट करके देंगे। ये भी सेम है बिटवाइज एंड ऑपरेटर। एक नॉर्मल एंड ऑपरेटर सीधा हमें स्टेटमेंट्स में एंड ऑपरेटर लगा के दे देगा, बट बिटवाइज क्या करेगा, उन्हें पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेगा और फिर एंड लगाएगा हर एक बिट पे इंडिविजुअली। देखते हैं कैसे काम करता है ये। और ये आखिरी हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स हम देखते आ रहे हैं, हम बड़े आराम से लिख देते हैं a = 10, b = 20। वो एक्चुअली ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। इस a वेरिएबल को मैंने 10 असाइन किया है, एज यू कैन सी। b को मैंने 20 असाइन किया है। एक ch एक कैरेक्टर वेरिएबल है, डेटा टाइप यहाँ नहीं लिखा हुआ है, ch है, उसको मैंने y असाइन किया है, तो ये यहाँ यूज होता है इक्वल टू। ओके,
ये भी एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, इसको कहते हैं प्लस इक्वल्स, ए प्लस इक्वल्स बी, इस तरह से इसको रीड किया जाता है। ये थोड़ा नया है, हम पहली बार देखते हैं, बट इसका जो मतलब है वो एग्जैक्टली ये है, ए इज इक्वल टू ए प्लस बी। क्या क्या ये स्टेटमेंट, ए प्लस इक्वल्स बी, ए को बी में प्लस कर दो और वो जो वैल्यू आ रही है उसको ए के इक्वल कर दो, एज सिंपल एज दैट। ये दोनों एक्सप्रेशन सेम है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे थ्योरी होगी, बेसिकली स्किम थ्रू किया हमने। अब इसको कोड में हम देखते हैं। कोई डाउट है क्या थ्योरी वगैरह में किसी को? एनीवन? कुछ डाउट हो अभी? अभी इम्प्लीमेंट करेंगे हम, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, यू वर सेइंग समथिंग आर्यन? अब ये लिख सकते थे साथ के साथ सारे अपने वो ऑपरेटर्स, बट काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा वो, तो मैंने लिख रखे हैं यहाँ पे ऑलरेडी, इसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने लिख रखे हैं ऑलरेडी, हम इनमें से कुछ कुछ रन करके देखेंगे अभी। और आप सब अपने साथ साथ आईडी को अगेन वही स्प्लिट कर लो और रन करके देखोगे। मैं दोबारा टाइप नहीं कर रही बिकॉज काफ़ी सारे हैं, टाइम लग जाता काफ़ी। सो देखते हैं ये हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स अभी हम देख के आए हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड्यूलस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। दिस इज पोस्ट इंक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट। ये डिफरेंस है, प्लस प्लस बाद में आ रहा है, प्लस प्लस पहले। इससे आउटपुट में क्या फ़र्क आता है वो भी देखते हैं हम, ठीक है। पहले बाइनरी देख लेते हैं। कितना रन करते हैं अभी? इसको रन किया जाए। ये देखो, ये हमने इम्प्लीमेंट किया। अब यहाँ तुम सी आउट की स्टेटमेंट अगर देखो ध्यान से, तो यहाँ मैंने पहले लिखा कोट्स में, ये ए प्लस बी का एक्चुअल अर्थमेटिक ऑपरेशन से कोई लेना देना नहीं है। ये ए प्लस बी कंपाइलर को नहीं कह रहा कि तुम मुझे ए प्लस बी प्लस करके दो। ये ए प्लस बी इक्वल्स यहाँ पे सिर्फ ये प्रिंट कर रहा है ताकि हमें पता चले कि ये वैल्यू किसकी है। अब यहाँ मैंने बिना कोट्स के लिखा। अब इसने ए को ढूंढा मेमोरी में जाके कि ए वेरिएबल है क्या, डिक्लेयर किया गया है क्या, इनिशियलाइज है, उसके पास वैल्यू है, उसकी वैल्यू निकाली, बी के साथ फोर वैल्यू निकाली और अर्थमेटिक ऑपरेटर लगाया, प्लस किया 12 और वो यहाँ पे प्रिंट हुआ, एज यू कैन सी। सिमिलरली माइनस में हुआ, मल्टीप्लाई में हुआ, डिवाइड में भी हुआ। ओके, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं मॉड्यूलस। मॉड्यूलस क्या करता है? मॉड्यूलस एक नाम है रिमाइंडर के लिए। जब हमने दो नंबर को आपस में डिवाइड किया तो क्वेश्चन तो हमें इससे मिल जाता है डिवाइड करने से। रिमाइंडर कहाँ से मिलेगा? रिमाइंडर हमें मिलता है मॉड्यूलस लगाने से। सो ए और बी की वैल्यू 8 और 4 है और मैंने मॉड्यूलस लगाया। तुम गैस करो क्या आएगा आउटपुट। हम रन भी करते हैं। ये आ गया 0 क्योंकि 8/4 2, रिमाइंडर 0, ये आ गया। अब सपोज मैं यहाँ पे कर दूँ 10, कर दिया। अब देखते हैं, ये 2 हो गया। तुम 10/4 करोगे, 2 रिमाइंडर बचेगा, 4 2 8, 10 माइनस 8 2, ठीक है। ये मॉड्यूलस हो गया। बट अब यहाँ तुमने एक चीज़ नोटिस की कि मैंने इसको 10 और 4 किया, बट a/b अभी भी यहाँ पे 2 ही है। 10/4 होता है 2.5, बट यहाँ आ रहा है 2। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरे a और b दोनों इंट है, वो आपस में ऑपरेट जब करेंगे, इन पे कोई भी ऑपरेटर लगाया जाएगा तो उसका आउटपुट एक इंट ही होगा नो मैटर व्हाट। वो एक फ्लोट पॉइंट, एक डेसिमल पॉइंट नहीं देगा मुझे। और वही उसने किया, एक इंटीजर पॉइंट डेसिमल को रिमूव करके सिर्फ 2 मुझे दे दिया, 2.5 नहीं दिया। अब अगर मुझे तो 2.5 चाहिए, मैथ्स में तो ऐसा नहीं चलता, तो मैं क्या करूँगी, फ्लोट पे हम मॉड्यूलस नहीं लगा सकते, तो मैंने उसको कमेंट कर दिया और यहाँ लिख दिया फ्लोट। अब ये मेरे ए और बी जो हैं ये फ्लोट टाइप के हो गए। अब मेमोरी के लिए ये 10.0 और 4.0 है। भले यहाँ 10.4 दिख रहा है बट ये एक्चुअली 10.0 और 4.0 है हमारे सिस्टम के लिए। और अब मैंने उन्हें डिवाइड किया, अब उसका आउटपुट फ्लोट ही आएगा, अब वो इंट नहीं देगा हमें। अब ये 2.5 आया, तो तुम देख रहे हो ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक्स करते हैं हम, तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। ये टॉपिक ध्यान से देखो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, ये हिंट है तुम्हारे लिए। इससे थोड़ा एक्स्ट्रा ही आएगा, थोड़ा अच्छे से इसको ग्रास्प करो ताकि आगे भी सोच सको। ओके,
ठीक है, अब इनको हम कमेंट कर देते हैं। हमने बाइनरी देख लिया, बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हमने देख लिया। अब हम देखेंगे यूनरी, सिंगल ऑपरेंड। यहाँ क्या हो रहा है, जैसा मैंने कहा, ये है पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर a प्लस प्लस। ए की वैल्यू अभी 10 है, यहाँ पे मैंने सी आउट किया a प्लस प्लस। इंक्रीमेंट क्या करता है, बेसिकली +1 कर देता है। जो भी मेरा वेरिएबल है उसकी वैल्यू है उसमें +1 जोड़ देगा वो, और मेमोरी में वो स्टोर कर देगा। बट यहाँ तुम देख रहे हो, मैंने इसको रन नहीं किया अभी, एक सेकेंड। यहाँ तुम देख रहे हो यहाँ 10 ही आ रहा है, इंक्रीज तो हुआ ही नहीं, क्योंकि ये है पोस्ट इंक्रीमेंट। ये पहले प्रिंट करेगा, पोस्ट इंक्रीमेंट में ऐसा होता है, ये पहले प्रिंट करेगा 10 की वैल्यू, और फिर जो ए वेरिएबल था हमारा मेमोरी में उसकी वैल्यू को अपडेट कर देगा, उसकी वैल्यू में +1 कर देगा। तो इसने बेसिकली यहाँ क्या किया, सी आउट था, ए प्रिंट तो कर दिया, बट प्लस प्लस ने उसकी मेमोरी में a इज इक्वल टू a+1 कर दिया। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, ये कोट में था, मुझे यहाँ से नहीं समझाना चाहिए था, आई एम रियली सॉरी। ये प्रिंट कर रहा है ऑपरेटर, ये है हमारा जो एक्चुअली काम कर रहा है सारा, a++ पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ओके, तो उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने यहाँ लिखा अगेन कोट्स में a इज इक्वल टू, ये तो मैं दिख रहा है यहाँ पे जस्ट बेटर दिखाने के लिए, और फिर a की वैल्यू प्रिंट की जो कि 11 होगी, क्योंकि वो इंक्रीज हो गया। अब मेमोरी में वो a इज इक्वल टू 11 है, भले प्रिंट यहाँ पहले 10 हुआ। सो दिस इज हाउ पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर वर्क्स। अब ये है पोस्ट डिक्रीमेंट, तो तुम गैस कर सकते हो ऑलरेडी ये क्या करेगा, पहले a को प्रिंट कर देगा और फिर उसमें से उसकी मेमोरी में a इज इक्वल टू a-1 कर देगा। तो अब a 11 हो गया था हमारी ऊपर वाली स्टेटमेंट से, तो यहाँ a प्रिंट हुआ 11, और फिर ये डिक्रीज हुआ, डिक्रीमेंट ऑपरेटर हमने यूज़ किया है, तो मेमोरी में वो वापस हो गया 10, 11-1, ठीक है। और फिर मैंने a प्रिंट करवाया यहाँ पे, तो ये 10 हो गया। दिस इज हाउ पोस्ट इंक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर वर्क। तुम सिंपल तरीके से याद कर सकते हो, a पहले आ रहा है फिर प्लस हो रहा है। अब ये देखते हैं प्री इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट, इनमें तुम देखो डिफरेंस बस यही है, प्लस प्लस पहले आ रहा है और फिर a आ रहा है। तो प्री इंक्रीमेंट क्या करते हैं, वो पहले इंक्रीज कर देंगे, +1 कर देंगे ऑलरेडी, और फिर उसको प्रिंट करेंगे। तो मेमोरी में जब ये चला तो मेमोरी में पहले a इज इक्वल टू a+1 हुआ और फिर a प्रिंट हुआ, ठीक है। अब ये जो हमने लास्ट स्टेटमेंट देखी थी वो उसमें a इज इक्वल टू 10 था। अब यहाँ मैंने ये किया प्री इंक्रीमेंट, तो उसने पहले +1 कर दिया, 11 हुआ, और फिर ये 11 प्रिंट हुआ यहाँ पर, बस हो गया काम वही खत्म, और मेमोरी में वो 11 ही है। फिर हमने इसको प्री डिक्रीज किया, प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया इस पर, तो माइनस माइनस है, जैसा कि दिख रहा है पहले माइनस है तो पहले माइनस हो जाएगा। वो हमारी वैल्यू यहाँ पे 11 थी मेमोरी में a की, तो डिक्रीज होगा वो, a इज इक्वल टू a-1 हो गया। अब a में a जो वेरिएबल है हमारा मेमोरी में, वहाँ पे 10 स्टोर हुआ है, और फिर ये यहाँ पे प्रिंट हुआ 10, बस काम खत्म वहीं पे। और ये उसके बाद दोबारा हमने a प्रिंट किया और 10 ही वैल्यू आ गई। तो ये यूनरी ऑपरेटर्स इस तरह से काम करते हैं। कोई डाउट किसी को, पूछ लो, सबको समझ आ गया? Sorry, couldn't get you. Can you please repeat? अरिहंत ने डाउट पूछा था आई थिंक कुछ। जसविंदर, हाँ इट्स नॉट ऑडिबल मेरे। अरिहंत का डाउट है कि पोस्ट इंक्रीमेंट कैसे काम करता है। पोस्ट इंक्रीमेंट कैसे काम करता है, ये रहा पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है, इसको देखते हैं दोबारा। पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या हुआ, इसका रिप्रेजेंटेशन तुमने देखा a++, a एक वेरिएबल है जिसमें वैल्यू स्टोर्ड है a। पोस्ट क्या करेगा, पहले a को प्रिंट कर देगा, मैंने यहाँ सी आउट कीवर्ड यूज किया, a को प्रिंट करेगा, और उसके बाद जो a वेरिएबल है मेमोरी में उसकी वैल्यू को +1 कर देगा, a इज इक्वल टू a+1 करेगा। बाद में पहले a ही प्रिंट होगा नॉर्मली बिना किसी चेंज के, जैसे यहाँ प्रिंट हो गया 10, और फिर वो मेमोरी में 11 हो गया। तो उसके बाद जब मैंने a प्रिंट कराया तो उसकी वैल्यू मुझे 11 मिली, वैल्यू 10 थी, इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा और ये 11 हो गई। प्री में पहले ऐड हो जाता है एंड हमें सीधा अपडेटेड वैल्यू मिलती है। पोस्ट में ऐसा नहीं होता, हमें वही वैल्यू मिलती है और वैल्यू फ्यूचर यूज के लिए अपडेट हो जाती है। कुछ क्लियर हुआ?
अरिहंत माइक में कुछ इशू है तो हैंड रेज करके बता दो अगर डाउट क्लियर है तो। अभी डाउट है या डाउट क्लियर है? अगर डाउट क्लियर हो चुका है तो नीचे कर लो हाथ। अब किसी को डाउट है तो पहले हैंड रेज कर लो एक बार, किसी को भी, अरिहंत को भी अगर डाउट है इससे रिलेटेड तो उठा लो दोबारा। कोई डाउट नहीं है किसी को? आगे बढ़े, अब हैंड रेज करो अगर आगे बढ़ने के लिए तैयार है। बहुत बढ़िया, ठीक है, फटाफट करते हैं, आज सेशन थोड़ा लेट हो गया। असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ये देख लेते हैं। असाइनमेंट बहुत सिंपल है, हम यूज़ करते आ रहे हैं, बस पता नहीं होता कि इसको असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। ये तो एकदम बेसिक सा हो गया ना। ये मैं रन करके क्या ही दिखाऊंगी, इसमें सब एक साथ कर लेते हैं। तो हमने रन किया, कुछ तो हुआ, क्योंकि देखो ये मैंने दो जगह ए और बी को डिक्लेयर किया तो मेरे को एरर थ्रो हुआ। मैंने यहाँ पे बोला कि ए तो एक फ्लोट है और यहाँ मैंने ए को दोबारा इनिशियलाइज किया एज इंट, तो मेमोरी ऐसे कहेगी यार क्यों मजाक कर रहे हो मेरे साथ, तो ये एरर आ गया मेरे पास, उसको मैंने कमेंट कर दिया। अब ये चलना चाहिए। क्या हुआ? फाइल रन नहीं है किसी रीजन से। रन करने में कभी कभी कोड रनर से दिक्कत आती है। लेट्स ट्राई इट दिस वे। या ठीक है, तुम देख रहे हो कभी कभी कोड रनर में दिक्कत आ जाती है, तो ये सिंपल सा तरीका है। G++ फाइल का नाम, ये एग्जीक्यूटेबल फाइल है तुम्हारी, ये कल सिखाया था आई थिंक, तो ऐसे भी रन कर सकते हो, ठीक है। सो लेट्स सी नाउ। तो यहाँ मैंने क्या किया, एक इंट है उसको डिक्लेयर कर दिया ए और उसमें वैल्यू असाइन कर दी 5। मैं चाहती मैं डायरेक्ट यहाँ पे भी असाइन कर सकती थी, बट मैंने वो नहीं किया। इसको कहते हैं डिक्लेयर करना। और ये हुआ, अगर मैं इसी के साथ यहाँ पे ऐसे कर देती तो ये हो जाता इनिशियलाइज, बट अभी मैंने सिर्फ डिक्लेयर किया है, इसको वैल्यू कुछ नहीं दी। और यहाँ मैंने इसको वैल्यू असाइन कर दी 5। मैंने सी आउट किया ए, एंडल किया और ये मुझे 5 यहाँ पे दिख रहा है। ए प्लस इक्वल्स 5 जैसे मैंने बताया था, यहाँ लिखा हुआ है मैंने दोबारा रेफरेंस के लिए। दिस इज सेम एज ए इज इक्वल टू ए प्लस 5। ए में 5 ऐड कर दो और दोबारा ए को ही असाइन कर दो। तो 5 था ए ऑलरेडी, उसमें 5 और ऐड हो गया 10। अब मैंने उसमें से ए माइनस इक्वल्स 2 कर दिया। समझ रहे हो, ए की वैल्यू में से 2 घटा दो और उसको ए में ही असाइन कर दो दोबारा। तो तुम्हें दिख रही है यहाँ पे अब 10 हो गई थी वैल्यू, देख रहे हो ना, यहाँ पे वैल्यू 10 हो चुकी थी। अब यहाँ पे 10 माइनस 2 8 हो गया। यहाँ मल्टीप्लाई इक्वल, ए को 2 से मल्टीप्लाई करो, ए हमारा 8 था ऊपर, ए की वैल्यू 8 थी इस वक्त, उसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, मल्टीप्लाई इक्वल है, और फिर दोबारा ए को ही असाइन कर दो। दिस इज दिस, ए इज इक्वल टू ए इंटू 2, ए इज इक्वल टू हो गया हमारा 16, जो मैंने यहाँ प्रिंट कराया और हमें यहाँ दिखा 16, ठीक है, ऑल राइट। उसके बाद हमने वही डिवाइड इक्वल किया। तुम समझ रहे हो कि क्या गेम है एग्जैक्टली, एक में समझ आ गया, सब में आ जाता है। ऐसे ही मॉड्यूलस में भी यूज़ कर सकते हैं हम, बट इसका यूज़ होता नहीं जनरली, बट ये वर्क करता है, बस ये बताने के लिए मैंने किया। ए डिवाइड इक्वल 2 करोगे, यहाँ पे 8 आ जाएगा। 8 मॉड्यूलस इक्वल 4 करोगे, 8 का 4 से मॉड्यूलस करो, 8 मॉड्यूलस 4 और उसको ए के ही इक्वल कर दो, तो तुम यहाँ देखोगे ए इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 8 मॉड्यूलस 2 0, ये हो गया। तो ये हमारे थे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अगर हमने किसी भी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन की है, यहाँ पे तुम देख रहे हो मैंने ए को बार बार वैल्यू असाइन किया, वैल्यू चेंज होती गई है, तो इसलिए हम उनको कह रहे हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ये इस कुछ असाइनमेंट ऑपरेटर्स थे, इसको मैं दोबारा कमेंट कर रही हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है अब। कोई डाउट अगेन किसी को? फटाफट बताओ, कुछ है तो हैंड रेज कर लो या बोलो सीधा। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब हमें देखने हैं थर्ड टाइप हमारे, रिलेशनल या कंपैरिजन, सेम मतलब है दोनों का। कंपेयर करेंगे ये हमारे दो ऑपरेंड्स को। दोबारा मैंने ए और बी डिक्लेयर किया है यहाँ पे, ठीक है।
और अब मैं चाहती हूँ, जैसे मैंने बताया था, जो हमारे रिलेशनल है वो भी एक बूल वैल्यू ही देंगे हम, बूलियन, या तो बताएंगे ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू के लिए सिस्टम हमारा प्रिंट करता है 1, फॉल्स के लिए वो प्रिंट करेगा 0। तो हमें उससे पता चल जाएगा कि ये स्टेटमेंट सच है या नहीं। अब मुझे कंपेयर करना है ए और बी को। ए की वैल्यू है 5, बी की 8। ये मैंने अभी बताया था, ये चेक करता है कि क्या दोनों ऑपरेंड्स मेरे इक्वल हैं या नहीं। क्या ए बी के इक्वल है? नहीं है। 5 और 8 इक्वल नहीं है, तो ये मुझे यहाँ पे 0 मिलना चाहिए, फॉल्स। इसको रन कर लेते हैं। रन में दिक्कत आ रही है तो मैं यही करूँगी दोबारा। ये टर्मिनल से रन कर रही हूँ मैं। ओके, ये देखो मुझे फॉल्स मिल गया यहाँ पे, है ना। ठीक है, ये लेस देन इक्वल टू का सिंबल है, इसको तो जानते हैं हम। क्या ए बी से कम या उसके इक्वल है? हाँ है। 5 8 से छोटा है, ये इसको सेटिस्फाई करता है, तो मुझे ट्रू मिलेगा। दिस मीन्स ट्रू 1, ये सच है। ठीक है, ये अभी मतलब बहुत बेसिक तरीके से हम समझा रहे हैं, इसका यूज़ काफ़ी आएगा आगे जब हम कंडीशनल्स वगैरह पढ़ेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छे से देखना थोड़ा। ऑलराइट, इसकी प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। ये भी सिंबल हमें पता है, ग्रेटर देन इक्वल टू। क्या ए बी से बड़ा या उसके बराबर है? नहीं है, छोटा है वो उससे, ना बड़ा है ना बराबर है, तो इसने मुझे फॉल्स दे दिया। बहुत बढ़िया, ठीक है, 0 आ गया। क्या ए बी से छोटा है? हाँ है, 1। क्या ए बी से बड़ा है? नहीं। इसको कहते हैं नॉट इक्वल टू। ये मैंने एक एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल का साइन है, जैसे ये दोनों इक्वल थे, क्या इक्वल हैं? यहाँ पे एक नॉट आ गया, तो नॉट वर्ड से हमें पता चल रहा है क्या ए और बी आपस में इक्वल नहीं है? नहीं है, ये सच है। 5 और 8 आपस में इक्वल नहीं है, सच है, ट्रू है। ट्रू का मतलब 1, ये मुझे यहाँ पे मिल गया 1। तो इस तरह से हम दो वैल्यूज को कंपेयर कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपना कोड आगे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, आगे लिख सकते हैं, कि हमें लॉजिक बिल्ड कर सकते हैं बेसिकली। तो ये यहाँ यूज होंगे। ऑलराइट, कोई डाउट किसी को? बहुत बढ़िया। आगे हमारे लॉजिकल, मैंने अभी बात की थी एंड गेट, और गेट और नॉट गेट की। ये हमारा एंड गेट की तरह काम करता है, ये और ये नॉट। ये नॉट हम ऊपर भी देख के आए, सेम एक्सक्लेमेशन का सिंबल है। ठीक है, तो एंड में हमको पता है एंड गेट कैसे काम करता था। अगर दोनों 1 1 होते थे, हमें सिर्फ तो ही 1 मिलता था, अदरवाइज हमें 0 मिलता था। अगर दोनों में से एक भी स्टेटमेंट मेरी फॉल्स है, सच नहीं है, तो वो उसका जो पूरे एंड का आउटपुट आएगा वो फॉल्स ही आएगा, ट्रू नहीं आएगा। एंड गेट उस तरह से काम करता है, हमारा एंड ऑपरेटर भी उसी तरह से काम करता है। अगर मुझे कभी दोनों स्टेटमेंट्स अपनी कंपेयर करनी है, कंपेयर नहीं है मेरी, सॉरी, अगर मुझे चेक करना है कि क्या मेरी दोनों स्टेटमेंट्स सच हैं, तो ही एक कोड एग्जीक्यूट करना, वरना मत करना। ये अगर मगर आ रहा है, यहाँ पे एक लॉजिक बिल्ड हो रहा है, तो इसीलिए ये हमारे एक तरह से इनको लॉजिकल ऑपरेटर्स भी इसी वजह से कहते हैं। तो वो उस तरह से एग्जीक्यूट होगा। मैं ये बाकी के अभी 1 सेकंड के लिए कमेंट कर रही हूँ। ऑलराइट, ठीक है, अब ये मेरे पास सिर्फ एंड ऑपरेटर है। इसमें एंड ऑपरेटर का सिंबल है एंड, एम्परसेंड है 2 बार। ठीक है, ये देखो 1 0 0, सिर्फ ये ट्रू ट्रू थे, तो यहाँ पे 1 0 0 आया, 1 आया, बाकी सब ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स सब 0। यहाँ पे मैं ट्रू की जगह अगर 1 भी लिख दूंगी तो ये चलेगा। सिस्टम हमारा ये चीज़ समझता है कि बूल वैल्यू को 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ये मैंने बस एनहांस करने के लिए किया है। अब तुम सोचो ट्रू फॉल्स ऐसे डायरेक्टली यूज़ नहीं करते। सपोज मैंने ये स्टेटमेंट यूज़ की, मैं 1 सेकंड के लिए इसको यहाँ ला रही हूँ, और ये मैंने कमेंट से हटाया इसको, और मैं यहाँ स्टेटमेंट यूज़ कर रही हूँ, क्या ए लेस देन इक्वल बी है। ये स्टेटमेंट तुम्हारी सच है, तुम्हें पता है। ठीक है, यहाँ पे भी हम एक सच्ची स्टेटमेंट डालेंगे, और यहाँ मैं लिख देती हूँ क्या ए लेस देन बी भी है, इक्वल तो नहीं है कोई। अगर ऐसे कंपेयर करना है, ये बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल है, बट ये रियल लाइफ में कैसे यूज़ होता है, एक बस उसका जिस्ट देने के लिए। अब ये दोनों स्टेटमेंट्स मेरी ट्रू है, तो मुझे 1 मिल गया, मुझे पता चल गया कि वो उससे छोटा और उसके इक्वल भी है, और उससे छोटा भी है, यानी उससे छोटा ही है, उसके इक्वल नहीं है। मुझे ये चीज़ यहाँ से पता चल गई। इसका सिंपल तरीका भी था, बट अभी हमने ये यूज़ किया। ठीक है, इसको मैं दोबारा पहले जैसा ही कर रही हूँ।
ठीक है, अभी हमने सीख लिए, इसको मैं कमेंट्स में डाल दिया मैंने। अब हम देखते हैं और ऑपरेटर। और गेट हमें पता है, दोनों में से एक भी 1 है तो हमें 1 आउटपुट मिल जाएगा, नहीं तो 0। तो सिर्फ यस, कुछ कहना है किसी को? किसी का माइक अनम्यूट है आई थिंक, यार प्लीज म्यूट योरसेल्फ अनलेस कोई डाउट हो, डिस्टर्बेंस आ रही है। अरिहंत, डू यू हैव एनी डाउट? तो ठीक है, और मैं अभी मैंने बताया कोई भी एक अगर ट्रू है, कहीं भी एक अगर मैं एक सच्ची स्टेटमेंट दे दूं तो मुझे उसका आउटपुट ट्रू ही मिलेगा। ठीक है, लेट्स रन दिस और ये हम देखते हैं। ये देखो, ट्रू ट्रू था, मुझे 1 मिल गया, 1 मतलब ट्रू। ट्रू फॉल्स था, एक स्टेटमेंट मेरी सही है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये आगे चेक भी नहीं करेगा दूसरी स्टेटमेंट को, जाएगा ही नहीं, मुझे पहली स्टेटमेंट मेरी ट्रू मिल गई, वहाँ खत्म। ठीक है, और उसने मुझे ट्रू दे दिया। सी आउट है, फॉल्स है, दोनों फॉल्स है, तो ये मुझे यहाँ पे 0 देगा। ये फॉल्स हो गया क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट मेरी फॉल्स है, एक फॉल्स एक ट्रू, दोबारा मुझे 1 मिल गया। तो ये और ऑपरेटर ऐसे काम करता है। नॉट ऑपरेटर सिंपल, बिल्कुल नॉट गेट की तरह, एक सच्ची स्टेटमेंट का आउटपुट वो फॉल्स देगा और फॉल्स का ट्रू देगा। ये एक मैंने यहाँ पे एक ट्रू स्टेटमेंट लिखी है, सपोज मैं यहाँ पे लिख दूँ इफ इक्वल इक्वल 5, ये ट्रू है, 5 5 के इक्वल है, तो मुझे यहाँ पे ट्रू मिलना चाहिए था, बट मैंने यहाँ पे नॉट ऑपरेटर का यूज़ किया, तो ये मुझे फॉल्स देगा। लेट्स सी, इसने मुझे 0 दे दिया यहाँ पे, ये ट्रू था बट मैंने ओवरऑल पे यहाँ पे नॉट ऑपरेटर यूज़ किया तो इसने मुझे फॉल्स दिया। ये फॉल्स है, एक फॉल्स स्टेटमेंट लिखी है यहाँ पे, उस पर मैंने नॉट ऑपरेटर का यूज़ किया तो इसने मुझे ट्रू बताया। तो नॉट ऑपरेटर ऐसे खेलता है। इसके साथ हो गए हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स खत्म। कोई डाउट किसी को? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंफ्यूजिंग भी है थोड़ा, जब तक प्रैक्टिस ना करें। तो कुछ डाउट है तो बताओ, तो आगे बढ़ते हैं हम। ऑलमोस्ट 8:30। कूल कूल, फटाफट देखते हैं बिटवाइज। बिटवाइज मैंने बताया था, ऑपरेंड्स को पहले कन्वर्ट करेगा बाइनरी में और फिर हर बिट पे वो ऑपरेटर यूज़ करेगा इंडिविजुअली। तो मैंने यहाँ 2 इंट लिए, ए और बी, और इसका कमेंट हटा देते हैं, मैंने हटा दिया। ठीक है, मैंने लिया इंट ए इज इक्वल टू 9, बी इज इक्वल टू 5। यहाँ मैंने इनकी वैल्यू लिख रखी है ऑलरेडी, हम निकाल सकते हैं फटाफट, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, छोटे छोटे नंबर्स हैं बिल्कुल। तो मैंने विजुअलाइज करवाने के लिए यहाँ लिख दिया ऑलरेडी। 9 को अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 1001, 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1, बट यहाँ पे 0 है तो फर्क नहीं पड़ता, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 8, 8 प्लस 1 9, सिमिलरली 5, 1 प्लस 2 की पावर 2 4 5। ये इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, ये 8 बिट में काम करता है यहाँ पे, तो एज्यूम कर सकते हैं हम कि यहाँ 4 0 एक्स्ट्रा पीछे लगे हुए हैं, बट उनकी ज़रूरत नहीं है हमें, अभी हम 4 बिट में ही दिखते हैं। ठीक है, अब इनका रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसे होता है, तो स्पेस देकर दिखाते हैं। तो जो लॉजिकल ऑपरेटर था हमारा, उसमें 2 एम्परसेंड थे, यहाँ हमने एक कर दिया, इसको कहते हैं बिटवाइज एंड ऑपरेटर। ठीक है, तो ये करेगा क्या, इन दोनों पे इंडिविजुअली एंड लगाएगा। इसका ये LSB देखो, ये जो सबसे राइट मोस्ट वाला है बिट, इसको देखते हैं, 1 और 1 दोनों पे हम एंड लगा देते हैं, तो क्या आएगा, आउटपुट वो 1 ही देगा, दोनों तरफ 1 है, एंड लगा है, तो इसने मुझे यहाँ पे 1 दे दिया। 0 और 0 दोनों पे एंड, 0 आ गया, 0 और 1 अगेन 0 देगा, 1 और 0 फिर से 0 देगा। तो इसमें क्या हुआ, ये 0, और इसका जो डेसिमल कन्वर्जन है सिर्फ 1 है यहाँ पे, तो 2 की पावर 0 1, ये यहाँ पे 1 आ गया। इसको रन करेंगे हम, आई थिंक कमेंट्स की वजह से एरर आ रहा है कुछ, मैंने सेम लाइन में ही दिए हुए हैं।
कोई नहीं, देख लेते हैं, एरर वगैरह आते रहते हैं, डिबग कर लेंगे हम, कोई बात नहीं। देखो अब चल गया है, कूल। ये तुमने देखा आ गया यहाँ पे 1, ठीक है। सेम काम हमने और के साथ किया। अब यही दोनों नंबर थे, इन पे हर बिट पे और लगा देते हैं। तो यहाँ पे है 1 लास्ट वाली बिट और 1 आ जाएगा, 1 आ गया। 0 और 0 0 आ जाएगा, 0 और 1 तो 1 आ जाएगा, 1 और 0 तो फिर से 1 आ जाएगा क्योंकि और है। और इसको हमने वही कन्वर्ट किया अपने डेसिमल में, तो 13 ये तुम्हारा आउटपुट है यहाँ पे, ठीक है। ए एक्सॉर बी, एक्सॉर इज एक्स और एक्सक्लूसिव और, ये भी हमने पढ़ा हुआ है बट इतना यूज नहीं होता तो शायद हमें याद ना हो, तो हम जस्ट बता रही हूँ इसके बारे में थोड़ा सा। तो ए एक्सॉर बी क्या करता है, एक्सक्लूसिव और है ये तब 1 देता है जब दोनों में से एक 1 हो। अगर दोनों ही 0 है तो 0 ही है, ठीक है, और भी 0 ही देता है। बट अगर दोनों 1 है ना तो भी वो हमें 0 देगा। एक्सक्लूसिव है, सिर्फ एक 1 होना चाहिए, या तो ये सच हो या ये सच हो, दोनों सच ना हो तो हम एक्सॉर यूज करते हैं, ठीक है। तो ये भी बिट्स पे लगेगा, हर एक बिट पे लगेगा। 1 और 1 0 दे देगा, देखो और में इसने यहाँ पे 1 दिया था बट एक्सॉर हमें 0 देगा क्योंकि दोनों 1 है। 0 और 0 0 दे देगा, दोनों 0 है। 0 और 1 देगा, 1 और 0 फिर से 1 देगा। आउटपुट वेल यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है, ठीक है। ये जो लास्ट है इसको कहते हैं बिट वाइज नॉट ऑपरेटर। ये क्या करता है, सारे उनको इन्वर्ट कर देता है। सपोज मैंने यहाँ पे इसको बता दिया है अनसाइंड है, हमने अभी पढ़ा था अनसाइंड का मतलब क्या है। अब यहाँ पे जो नेगेटिव वैल्यू है उसका कुछ इफेक्ट नहीं है। बेसिकली मैं कैसे बताऊँ, बाइनरी में हमारा जो एक बिट होता है वो साइन को रिप्रेजेंट करता है, वो बताता है कि ये नंबर पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है। जब हम अनसाइन कर देते हैं तो वो क्लियर हो जाता है कि पॉजिटिव ही है, तो पूरा नंबर पॉजिटिव है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। हम उसको पॉजिटिव ही मान के चलेंगे ताकि हमें कोई नेगेटिव आउटपुट ना मिले। ये कभी कभी कंपाइलर डिपेंडेंट होता है, आंसर अलग आ जाता है ये साइन अनसाइन की वजह से। तो ठीक है, देखते हैं एक बार क्या हुआ यहाँ पे। मैंने बी को कराया, बी हमारा यहाँ पे 5 है, ठीक है, ये इसका वो है। अभी मैंने बताया था कि ये 8 बिट में काम करते हैं। 0 1 0 1 था, बट इसके पीछे यहाँ पे 0 0 0 0 लगे हुए हैं, 8 बिट है। अब बाइनरी ने नॉट बिट वाइज नॉट ने क्या किया, इनको इन्वर्ट कर दिया, 0 को 1 कर दिया, 1 को 0 कर दिया। तो हमें यहाँ पे रिजल्टेंट मिला इसका 1 1 5 0 है, 0 1 0, ठीक है। ये तुम्हें दिख रहा है काफी बड़ा नंबर है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 5 6 7 8, बहुत बड़ा नंबर है। बट यहाँ पे ये मुझे दोबारा रन करना पड़ेगा, मैंने इसको अनसाइंड अभी किया। ये देखो कितना बड़ा नंबर आ रहा है, तुम देख रहे हो, ये इसका आउटपुट है। एक्चुअली ये इसका आउटपुट भी नहीं है, ये एक गार्बेज वैल्यू है। नॉट बिट वाइज नॉट एक्चुअली इसलिए यूज भी बहुत कम होता है क्योंकि इसमें साइंड और अनसाइंड की वजह से बहुत दिक्कत आती है। बट इसका फंक्शन क्या है, ये करता क्या है वो हमने देख लिया, हमें पता है कि बिट वाइज नॉट का ये काम होता है। अब कभी कभी कंपाइलर मेमोरी में कुछ होती है गड़बड़, इस वजह से वो नहीं शो कर पाता। हो सकता है तुम्हारे कंपाइलर में नहीं, तुम्हारा कंपाइलर तो सेम है, तुम किसी और आईडी में इसे ट्राई करना, मे बी ऑनलाइन में, या कोई भी अगर तुम्हारे पास पहले से है उसमें ट्राई करना एंड सी की क्या आता है, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। ये थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है बट इसका आउटपुट डिबेटेबल है, ठीक है। बट ये काम ऐसे करता है, बिट्स को इन्वर्ट कर देता है, वो हमने कर लिया। अब बिट वाइज ऑपरेटर्स के ना यूज़ काफ़ी हैं। बिट मैनिपुलेशन बेसिकली इसका यूज़ करके हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं और ये काफ़ी फास्टर है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी इनफैक्ट टेक्निकल इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बिट वाइज ऑपरेटर के काफ़ी यूज़ है। तो मैं सारे यूज़ तो अभी ऑब्वियसली नहीं बताऊंगी, अभी हमारे स्कोप के बारे में अभी हमने काफ़ी कुछ पढ़ा नहीं है। हमने फॉर नहीं पढ़ा, फॉर लूप्स नहीं पढ़े, हमने कंडीशनल्स नहीं पढ़े। बट जब हम वो पढ़ेंगे हम पक्का इसको दोबारा डिस्कस करेंगे कि बिट वाइज से क्या क्या कमाल किए जा सकते हैं। अभी के लिए मैं तुम्हें एक छोटा सा वो बताती हूँ, ठीक है, सब साथ में सोचते हैं। मेरे पास एक नंबर है और मेरे को पता करना है कि क्या वो नंबर ऑड है या इवन है, बस इतना सा काम है। तो मुझे पहले तो बताओ, चलो तुम्हारे दिमाग में क्या सॉल्यूशन आ रहा है, कैसे पता कर सकते हैं। हमारा कंटेंट यहाँ पे ख़त्म हो चुका है आज का।
तो अगर किसी को पहले डाउट है तो वो बता दो मुझे, किसी भी ऑपरेटर में, इनपुट आउटपुट, डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स, एनीथिंग यू कैन आस्क राइट नाउ। एक छोटा सा फन डिस्कशन करेंगे हम उसके बाद कि हमने जो अभी तक इतना सीखा है उससे हम रियल लाइफ में क्या क्या कर सकते हैं, वो भी करेंगे, और उसके बाद क्विज होगी। एनी डाउट? हाँ जसविंदर, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। सेट प्रिसीजन सॉरी सेट प्रिसीजन समझा दे एक बार। ओके ओके ठीक है, सेट प्रिसीजन यहीं पे कर लेते हैं, दोबारा लिख लेंगे कोई नहीं। ये देखो मैंने क्या किया, एक इंट डिक्लेयर किया, फ्लोट सॉरी डेसिमल को सेट करेगा वो। मैंने एक फ्लोट डिक्लेयर किया a इक्वल्स 5.246 है, तो बड़ा सा नंबर है, बट इतने बड़े नंबर की मुझे ज़रूरत नहीं है, और इसके लिए मुझे आईओ मैंने, हाँ ठीक है, ये हेडर फाइल ऑलरेडी है हमारे पास, बहुत बढ़िया। अगर मैं इसको नॉर्मली सी आउट करूँगी, क्या मैंने ये डिक्लेयर किया हुआ है कहीं? ये ऑपरेटर रह गया, देखता है, पता नहीं चलता कभी कभी, ठीक है। अब मैंने ये नॉर्मली इसको प्रिंट किया, ये बड़ा सा नंबर आ गया, ठीक है। मुझे इतने नंबर्स नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि मेरे पास एक लिमिटेड वैल्यू में है। तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, मैंने सी आउट किया सेट प्रिसीजन, ये कीवर्ड है, ये हम यूज़ करेंगे, और इसके अंदर मैंने बता दिया कि मुझे कितनी लेंथ तक चाहिए। सपोज मुझे अप टू 3 चाहिए, ठीक है, और मैंने यहाँ बता दिया कि ये बेसिकली फॉर्मेटिंग के लिए है। इससे उसको पता चला कि अब जो आउटपुट आने वाला है अगली स्ट्रीम में, उसके ऊपर ये एडिटिंग करनी है, ठीक है। और अब जो स्ट्रीम आ रही है जिस पे एडिट करना है एक्चुअली, वो है मेरा ए, और ये मैंने लगा दिया एंड लाइन टैग, ठीक है। इसको रन कर देते हैं, ये देखो ये वो फिक्स्ड वाला काम है जो मैं समझाना चाह रही थी, उस वक्त मुझे नहीं पता, आई थिंक कुछ एरर किया होगा मैंने, हो सकता है, अपोलोजाइज। तो सेट प्रिसीजन ने क्या किया, जो मेरे डेसिमल से पहले भी है उसको भी इंक्लूड किया, और जो डेसिमल के बाद है उसको भी इंक्लूड किया, और टोटल मुझे 3 की लेंथ दे दी, 5, 2 और 1, 5.21, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम हमें नहीं पता होता कि हमारा डेसिमल पॉइंट से पहले कितना बड़ा होगा, कितनी लेंथ की वैल्यू होगी, पर हमें तो सिर्फ डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू को फिक्स करना है। विड्थ चाहे जितनी हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू को फिक्स करना है। तो ये मैंने सी आउट दोबारा किया, और अब मैं एक एक्स्ट्रा कीवर्ड यूज़ करूँगी विच इज़ कॉल्ड फिक्स्ड, और ये सेट प्रिसीजन, ये देखो दोबारा मैंने 3 कर दिया, ये ए और ये एंड एल, इसको रन कर देते हैं। ये देखो इन तीनों में अब हमें डिफरेंस दिख रहा है। मैंने पहले सिर्फ ए किया तो ये बड़ी वैल्यू आ गई, कितने डेसिमल की आ सकती है ये थोड़ा डिपेंड करता है कंपाइलर पे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता हमें। तो बट वो वैल्यू नहीं आई जो मुझे चाहिए थी, मुझे तो 3 डेसिमल पॉइंट तक चाहिए थी, तो मैंने सेट प्रिसीजन यूज़ कर लिया। बट उसने क्या किया, मेरे डेसिमल से पहले वाली वैल्यू को भी कंसीडर कर लिया, 2, 1 मुझे बाद में दिया, और 5 यहाँ पे ऑलरेडी था। अगर मैं यहाँ पे 15 कर दूँ ना, तो ये मुझे सिर्फ 15.1 डेसिमल देगा आगे। ये देखो इसने सिर्फ 2 कर दिया, इसने इन दोनों को भी काउंट कर दिया 15.2। हालांकि जो मेरा, जब मैंने सेट प्रिसीजन को फिक्स्ड कीवर्ड के साथ यूज़ किया तो उसको पता चल गया कि डेसिमल पॉइंट के जो डेसिमल पॉइंट है मुझे उसको फिक्स करना है सिर्फ। तो वो फिक्स कीवर्ड से हमारे सिस्टम को ये पता चला, सेट प्रिसीजन 3 हो गया, और ये मुझे यहाँ पे 3 डेसिमल पॉइंट मिल गए। तो इसको हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं। आईओ मैनिप डालना ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये नहीं चलेगा। अगर मैं इसको यहाँ पे फॉर एग्जांपल हटा दूँ आईओ मैनिप, ये देखो अंडरलाइन हो गया, ये नहीं चलेगा, एरर आ जाएगा। ये देखो आनी चाहिए, बार बार जान की एरर दे रही हूँ, ठीक है। तो ये ऐसे काम करते हैं। इसको तो अगर अभी भी डाउट आ रहा है एक बार रन करके देखो, हाथ बैठ गया तो ये क्लियर हो जाएगा एकदम। अब बताओ जसविंदर, डाउट है अभी क्या क्लियर हो गया? भी हो गया। बहुत बढ़िया, ठीक है। अक्षय प्रभात मिश्रा, क्या डाउट है? हाँ दीदी, मेरा ये डाउट है, आपने वो सेट प्रिसीजन वाला किया, वो आपने फ्लोटिंग नंबर पे दिखाया था,
तो वो इंटीजर्स पे भी काम करता है अगर हम लोग फिक्स्ड वाला कीवर्ड यूज ना करें? मतलब तो बेसिकली अगर क्या एक बड़ा सा इंटीजर है, अगर एक बड़ा सा इंटीजर है वो स्टार्टिंग की कुछ डिजिट्स डिस्प्ले करेगा, सपोज 54937 है तो 5493 डिस्प्ले होगा। ये मतलब राउंड ऑफ का कोई तरीका नहीं हुआ ना, तुम 5437 को 543 नहीं कह सकते। वो मैं स्टार्टिंग के 3 डिजिट की केवल डिस्प्ले करा रहा हूँ। देखो रियल लाइफ में इस चीज का सेंस बनता है क्या? अगर तुम्हारे पास 5437 है और तुम चाहते हो 543, एक 5000 वाला नंबर है, 5 इंटू 10 की पावर 3, और वो 5 इंटू 10 की पावर 2 प्रिंट करे, एक हंड्रेड्स में आ जाए 543, उस चीज़ का सेंस नहीं बनता। मैंने जेनुअनली ये चीज़ कभी ट्राई नहीं किया, तुम कह रहे हो, मैं अभी ट्राई करूँगी, बिल्कुल एक्सपेरिमेंट करते हैं। मेरे हिसाब से आना चाहिए, तो वो नहीं आएगा वैसे वो, बट चलो देखते हैं। इस पर्पस के लिए परसेंट ऑपरेटर यूज़ होता है, जो हम लोग मतलब यूजुअली सी में यूज़ करते हैं प्रिंट करने के टाइम, जब हम परसेंट यूज़ करते हैं स्कैनफ और प्रिंटफ के टाइम, तो उससे हो जाता है, एंड वो C++ में भी चलता है अगर यूजुअली आपको इंटीजर के साथ ऐसा करना हो तो। ये कुछ होगा, अभी देखते हैं क्या होता है। ठीक है यार, अच्छी बात है, ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए। कंपाइलर भी तंग कर रहा है आज। देखो पूरा है, इस पर वर्क ये नहीं किया। चलो हम देखते हैं, अगर मैं इसकी विड्थ सेट करूँ तो क्या होता है। हमने एक और देखा था ना, सेट W, याद होगा। देख लेते हैं क्या होता है। मैंने इसकी विड्थ 3 कर दी है, 5 तक कैसे दिखाएगा मेरे को, देखते हैं। नहीं करता है काम, ठीक है। ओके ठीक है, ओके ठीक है ना। हाँ, क्योंकि उस चीज़ की सेंस नहीं बनती। तुम डेसिमल से पहले अगर कुछ नंबर हटा रहे हो तो ना मतलब ही एकदम बदल गया, 1000 में था नंबर और 100 में हो गया, तो वो ऐसे नहीं हटा सकता उसको, काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, और कोई डाउट? गौरव? यस। एक बार ये जो बिटवाइज का नॉट ऑपरेटर है ये समझा दोगे? हाँ ज़रूर। बिटवाइज का नॉट मैंने बताया था, एक एरर भी देता। मैं तुम्हें गूगल करके दिखा सकती हूँ इनफैक्ट अभी, या तुम खुद भी कर सकते हो अगर इतना मन है तो, बट रुको मैं बताती हूँ। मैं इनफैक्ट गूगल ही करती हूँ। रुको, इसमें क्यों दिक्कत आ रही है? तुम सोच रहे हो कि दिक्कत आ रही है। ये देखो, इन्होंने सारे ऑपरेटर्स यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, इसने बता दिया, यहाँ आउटपुट आ गया। मैंने ये सेम काम किया था, अगर तुमने देखा हो तो, बिटवाइज ऑपरेटर ए, ठीक है, और यहाँ इनको वैल्यू मिली बिटवाइज नॉट की 250, विच इज़ फाइन, करेक्ट है ये। मेरे कंपाइलर में वो वर्क नहीं कर रहा क्योंकि ये कंपाइलर इश्यू है। यहाँ इन्होंने लिखा भी होगा कि आउटपुट अलग आ सकता है, ठीक है, बट यहाँ पे एक पॉइंट है नोटिस करने के लिए। ये देखो, ये पूरा पॉइंट, ये काफ़ी दिक्कत देता है। इसमें एग्जैक्टली यहाँ पे हुआ क्या, मैंने तुम्हें फंक्शनिंग इसकी बताई। इसने क्या किया, ये मेरा नंबर था बाइनरी में 0101, इसने क्या किया, 1 को 0 कर दिया और 0 को 1 कर दिया, इन्वर्ट कर दिया। बट यहाँ पे ऑलरेडी 4 0 थे, एक बाइट का था ये, तो मेरे को 4 जीरोस एक्स्ट्रा, अभी इन 4 जीरोस की वैल्यू नहीं है, बट जब मैं इन्हें इन्वर्ट करूँगी, जब ये 1 बन जाएंगे तो इनकी वैल्यू हो जाएगी। तो हमें यहाँ पे इनको इंक्लूड करना पड़ा और ये इसका रिजल्टेंट आया। अब इसको इसने दोबारा डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट किया। इसकी डेसिमल वैल्यू कितनी आएगी मुझे नहीं पता, बट उतनी नहीं आएगी जितनी ये मुझे यहाँ दिखा रहा है। काफ़ी बड़ी वैल्यू थ्रो कर रहा था ये। तो मेरा शायद एक बेकार सा डाउट है कि मतलब इंट है, इंट की 4 बाइट्स हैं, एक बाइट की 8 बिट हुई और एक बिट में तो 0 आएगा या 1 आएगा, और हमारा 5 मतलब जो नंबर हो रहे वो है 5, तो बाइनरी में उसका जो रिप्रेजेंटेशन है 0101। अब इसमें हम नॉट लगा देंगे तो काफी बड़ा नंबर हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास कितने 32 बिट्स है अब, तो मेरे ख्याल से 250 से भी बहुत बड़ा नंबर होगा। मेरा ये डाउट है। ये तो एक सेकेंड, तुम कह रहे हो कि 4 बाइट का है इंट हमारा, तो हमें 32 0 लगाने पड़ेंगे और 32 1 आ जाएंगे।
नहीं मैं कह रहा हूँ 4 बाइट है तो 32 बिट्स हुए। अब उन 32 बिट्स में 0 और 1 स्टोर्ड है। तो जो हमारा पहले था रिप्रेजेंटेशन बाइनरी में वो तो 0101 हुआ। लेकिन अब जब हमने नॉट लगा दिया तब तो बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा ना, क्योंकि उससे पहले के जितने नहीं सारे नहीं, जीरोस वो थे वो ना, सारे 1 हो गए। हाँ तो उसके लिए हमने लिए ना 4 एक्स्ट्रा जीरो, वो 1 बाइट का है, तभी हमें वो कंसीडर करने पड़े। इन जनरल हम वो कंसीडर नहीं करते, हमने और किसी ऑपरेटर में नहीं किए। बट नॉट का वही है, 0101 होता है, 0 का 1 हो जाता है, इसलिए हमने पहले के लिए, और वो 4 जीरोस काउंट हुए। इन्होंने आई थिंक यहाँ पे लिखा है या नहीं लिखा, आई डोंट नो, बट अगर तुम इसको करोगे 8 बिट में कर लेते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं। यार एक्चुअली में गौरव, जितने हमें बिट्स चाहिए होते हैं उतने यूज़ होते हैं। अगर हमारा इंटीजर जो है वो 4 बिट्स है तो इट्स नॉट नेसेसरी कि हमारे पास 4 बाइट्स है, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि हमारे पास टोटल मिला के 32 010101 आएंगे। इट्स जस्ट दैट कि हर एक की अपनी रिप्रेजेंटेशन होती है, तो उसके अकॉर्डिंग काम करता है। एक होते हैं ASCII कोड्स, अगर आपने वो पढ़े हो तो वो मेनली मतलब बाइनरी कन्वर्जन के लिए होते हैं ASCII कोड्स। तो उसमें क्या होता है 8 बिट में यूज़ करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग होता है। डिफरेंट कन्वर्जन में डिफरेंट चीज़ें आती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग होता है। मतलब इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर इंटीजर इज 4 बिट्स यू नीड टू टेक 32 बाइट्स फॉर दैट, यू जस्ट नीड टू टेक हाउ मच वुड बी रिक्वायर्ड। दैट वाज योर डाउट, राइट? एम आई ऑडिबल? हाँ, ओके। मतलब इट्स जस्ट दैट मैं 32 बाइट्स लेकर अपनी मेमोरी वेस्ट नहीं करूँगी ना वहाँ पर। ये कुछ इस तरह से फंक्शन कर रहा है, और ये वैल्यू को अगर हम टोटल करेंगे तो 250 ही आएगा, जो आना चाहिए जेन्युइनली, बट ये नहीं आ रहा है। एक तो मैंने इसको यहाँ पे अनसाइन किया, अगर मैं इसको इसलिए तब भी गलत ही आएगा। अभी इसकी नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी क्योंकि यहाँ पे 1 है, तो उस वजह से नॉट में आता है। ये हमें बताया भी जाता है, इसलिए हम अवॉइड भी करते हैं इसे यूज़ करना। हम आगे प्रोग्रामिंग भी करेंगे तो इसे इतना यूज़ नहीं करेंगे जितना बिटवाइज एक्सॉर को यूज़ करेंगे। बिटवाइज एक्सॉर को तो करेंगे ही, बिटवाइज एंड को भी करेंगे, और को भी करेंगे। नॉट काफ़ी सिस्टम डिपेंडेंट है, बहुत एरर आता है उसमें, इन्होंने बहुत अच्छे से डाल रखा है यहाँ पे। द रिजल्ट ऑफ दिस ऑपरेटर ऑन अ स्मॉल नंबर कैन बी बिग नंबर इफ द रिजल्ट इज स्टोर्ड इन एन अनसाइंड वेरिएबल। जैसे कि हमारे पास आ रहा था बहुत बड़ा नंबर, मैंने अनसाइंड इंट लिया और नीचे मेरे पास 425 समथिंग बहुत बड़ी वैल्यू आ रही थी, 250 से बहुत बड़ी, और जब ये मैंने किया तो ये नेगेटिव नंबर हो गया क्योंकि मेरा पहला डिजिट जो था वो 1 था नेगेटिव। उस वजह से मुझे साइंड में एक नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, देख लेते हैं। ये साइंड है, इसमें बाय डिफॉल्ट साइंड ही होता है, इसको मैंने करा, बाकी सब कमेंट। देखो ये नेगेटिव आ गई क्योंकि ये साइन था, तो उसका एक अलग मतलब आ गया। अब मैं यहाँ पे इसको अगर अनसाइन कर दूँ, अब इसको माइनस प्लस से लेना देना ही नहीं है, ये सिर्फ मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करके एक वैल्यू दे देगा, तो ये बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से ये काम करता है, बट रियल लाइफ में हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम अवॉइड कर देते हैं, हम अपने नॉर्मल तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं, जेन्युइन आंसर ये आता है। बट ये क्योंकि काफ़ी सारे 1 है तो ये वैल्यू अब बड़ी सी आती है। अरे हाँ। एक सेकेंड जरा, मतलब मैं अभी इसमें मैंने गूगल पे सर्च करा बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्टर, तो जो मैं कह रहा था कि 32 बिट्स होंगे, तो हाँ इससे पहले के जो भी सारे जीरोस हैं उन सबको 1 कर दें और ये हाँ 1 को 0 कर दें, तो वही नंबर आ रहा है जो हमारा पहले आ रहा था। 4294 ये नंबर आ रहा है ना 429। 429496। हाँ हाँ हाँ, यही आ रहा सिस्टम यही नंबर थ्रो करेगा, पर हम इसको यूज नहीं करना चाहते, हमें आधी जरूरत नहीं है उस चीज की। आधी घंटा ठीक है। हाँ, किसका डाउट था ये? सिस्टम हमें वही थ्रो करेगा, उसने एक काफी बड़ा नंबर हमें थ्रो कर दिया उस हिसाब से, बट हम यूज नहीं करना चाहते वो नंबर। हम जब रियल लाइफ में यूज करेंगे तो हम ये नंबर नहीं लेना चाहते, हमें एक
हाँ हाँ एक नॉर्मल मतलब सुन रहा हूँ। तरीके से 1 बाइट में। हाँ, ओके। तो ये डिफरेंस है बस, इसलिए हम सिस्टम में यूज़ करना अवॉइड ही करते हैं इसे। मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी बिटवाइज नॉट यूज़ करने की। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया ये डाउट। इस वजह से ये अनसाइंड और साइंड की वजह से हमें दिक्कत मिलती है। इट्स जस्ट दैट कुछ टॉपिक्स हैं जैसे साइंड कॉम्प्लीमेंट्स, अनसाइंड कॉम्प्लीमेंट्स, वंस कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट, ये हम लोग मेनली डिजिटल सर्किट्स में यूज़ करते हैं। तो जब वो समझेंगे ना तो हमें समझ में आएगा साइन की इम्पोर्टेंस एंड अनसाइन की इम्पोर्टेंस, कॉम्प्लीमेंट्स तब हम पढ़ेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि कई बार नेगेटिव क्यों आ रहा है एंड कई बार पॉजिटिव क्यों आ रहा है। So that is totally based upon the logical gates that we use, like AND gates, OR gates and all. So that is based upon that. तो मतलब वहाँ पर you'll get more of an idea कि why we use so many bits and what is the reason behind that. अभी सेम 2 में तुम्हारा सब्जेक्ट भी आएगा ईडी, समझ के बाहर है वो, बट वहाँ पे ये सब पढ़ाया जाएगा बहुत अच्छे से। तब तुम्हें समझ में आएगा उसकी वैल्यू इतनी बड़ी क्यों आ रही है, इसकी वैल्यू नेगेटिव क्यों आ रही है, तब अच्छे से देखेंगे। बट हमारे कोर्स में, हमारे स्कोप में उसकी जेन्युइनली इतनी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और बताओ कोई डाउट? बस रैप अप करते हैं यार, बहुत लेट हो गया। आई नो आज शुरू करने में भी हमें लेट हो गया, कुछ भी है अभी। ठीक है, कोई डाउट नहीं? आई डोंट नो, मेरे का मन था कुछ करवाने का, वो कर सकते हैं अब या नहीं। बस 2 मिनट और लूँगी। मैंने बताया था एंड ऑपरेटर का, बिटवाइज एंड का एक यूज़ देखेंगे हम। ठीक है, तो हमें चेक करना है कि किसी नंबर, कोई भी नंबर इवन है या ऑड है, ये देखना है। इसका बेसिक तरीका किसी के दिमाग में भी आ रहा है? कोई शेयर करना चाहता है अनम्यूट करके? कैसे पता कर सकते हैं? मॉड्यूलो फंक्शन यूज कर लेंगे। बहुत बढ़िया। हाँ, मॉड्यूलो फंक्शन, मॉड्यूलो 2 कर देंगे। अगर 1 आ रहा है हमारे पास तो वो ऑड नंबर है, और अगर 0 आ रहा है तो वो एक इवन नंबर है। ठीक है, बहुत बढ़िया। बट एक अलग तरीका देखते हैं हम कि कैसे यूज़ कर सकते हैं, एंड ऑपरेटर से कैसे खेल सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया ए इंट, डिक्लेयर करेंगे, मैंने दिया एक ऑड नंबर और मैं चाहती हूँ सी आउट हो जाए बिटवाइज एंड और 1। यहाँ हुआ क्या मैं अभी समझाती हूँ, बट अभी देखते हैं। ठीक है, सब कमेंट में एरर नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे 1 आया, क्यों आया देखते हैं। 1 का मतलब बाय द वे यहाँ पे ऑड है, क्यों है। अब मैं यहाँ पे कमेंट डालती हूँ एक, 15 को फटाफट बाइनरी में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पे आएगा 7, ये देखो, ये इसका बाइनरी है, तुम चेक कर सकते हो करना चाहो तो। 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है, इसको हमने एंड 1 किया, एम्परसैंड। बेटर एक्सप्लेनेशन के लिए अब यहाँ पे 4 0 है, क्योंकि ये 4 बिट का है, कंपेयर करना है, कुछ है नहीं तो हम 0 मानेंगे। ठीक है, बिट बाय बिट कंपेयर कर देते हैं। 1 आया, 1 आया, ये स्टार्टिंग से नहीं, हम इधर से करते हैं। हाँ ठीक है, सॉरी। 1 और 0 है, तो एंड ऑपरेटर है, 1 और 0 का एंड 0 हो जाएगा। 1 0 फिर से 0 फिर से 0, लास्ट में 1 1 है, वो एक 1 देगा मुझे, जो मेरे को आउटपुट मिला है यहाँ पे। इसका मतलब 1 है। अब सपोज मैंने यहाँ पे लिया एक इवन नंबर, बस लास्ट का 1 हटा देते हैं। ये 14 है, इवन नंबर, ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 14 है। ठीक है, इसको बिटवाइज एंड कर देते हैं 0 0 1 के साथ, और यहाँ मेरे को आंसर मिलेगा, तुम देख रहे हो ये 1 है, ये 3 0 है तो 0। अब ये भी लास्ट में भी 1 और 0 हो गया, तो फिर से 0, ये मुझे 0 थ्रो करेगा। इट मीन्स ये फॉल्स है, ये एक इवन नंबर है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने एम्परसेंड किया और उसके आगे के सारे नंबर 0 हैं, तो ऊपर ओरिजिनल नंबर में कुछ भी हो वो मुझे 0 ही देगा, और जो लास्ट वाला नंबर है सिर्फ उसमें मुझे 1 मिलेगा, अगर वहाँ पे 1 है तो, और अगर वहाँ पे भी 0 है तो मुझे फिर से 0 मिल जाएगा। ठीक है, इस लास्ट वाले 1 का मतलब क्या है? 2 की पावर 0 है, ये इसकी वैल्यू 1, और उससे पहले सारे 2 की पावर में है। ये 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 8 है, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है। इन सब की वैल्यू जो है एक इवन नंबर है। 2 की पावर 2 4 इवन है, 2 की पावर 3 8 इवन है, सब इवन है। उन सबका टोटल करोगे एक इवन नंबर ही आएगा डेसिमल में। ठीक है, जो लास्ट वाला नंबर है तुम्हारा, सिर्फ वो डिटरमाइन करता है
कि क्या वो नंबर इवन है या ऑड है। अगर तुम्हारी लास्ट वाली बिट 1 है, इसका मतलब उसमें एक प्लस 2 की पावर 0 भी हो रहा है, विच इज़ 1, विच विल मेक योर एंटायर नंबर एन ऑड नंबर। और अगर तुम एंड में 0 ऐड कर रहे हो, एंड तुम्हारी लास्ट बिट जो है वो 0 है, तो ये सारे नंबर जो है सिर्फ 2 की पावर 1, 2, 3 इन्हीं में रहेंगे एंड इट विल बी एन इवन नंबर। तो उससे हमें पता चल रहा है अगर इसका रिजल्ट मुझे 0 मिल रहा है तो ये एक इवन नंबर है, और अगर 1 मिल रहा है तो ये एक ऑड नंबर है। ये हम इस तरीके से पता कर सकते हैं। ये क्यों करना है तुम सोच रहे हो, सिंपल सिंपल मॉड्यूलो कर सकते हैं बिटवाइज, जैसे मैंने बताया एक फास्ट तरीका भी है, और ये बहुत बेसिक तरीका है जो मैं इस लेवल पे अभी समझा सकती हूँ। इसके अलावा बहुत काम आता है बिटवाइज, बिट मैनिपुलेशन बहुत काम आती है। तो ये समझ देर से आता है बट एक अच्छा टॉपिक है। इसको अच्छे से हम जैसे जैसे आगे टॉपिक्स करेंगे क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। आई डोंट नो ये कितनों को अभी समझ में आया, नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं है, विद टाइम पक्का आ जाएगा, बट तुम देख रहे हो कि काफ़ी कूल चीज़ है ये। तो यही था आज के सेशन में, जो भी तुमने सीखा काफ़ी कुछ इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपना सी इन सी आउट करके। प्रैक्टिस करना, अब नेक्स्ट सेशन लेट होगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि भूल जाओ, सब प्रैक्टिस करते रहना, बस यही है मेरे एंड से। अब तुम डाउट पूछ सकते हो, कुछ है तो। उसके बाद क्विज शुरू कर रहे हैं हम फटाफट, बहुत ही जल्दी। एनी डाउट्स? नहीं है, बहुत बढ़िया। कोहूट खोल लो फिर फटाफट से, मैं 2 मिनट में कोड बताती हूँ। गेम पे इनविजिबल है सबको, एक बार हैंड रेस कर दो अगर है तो। बढ़िया बढ़िया, आ जाओ यार फटाफट सब। आई एम रियली सॉरी, आज का सेशन काफ़ी लंबा खिंच गया, बट आई होप तुम्हें इंटरेस्टिंग लगाओ और क्विज में और मज़ा आएगा। आज वाली थोड़ी सी टफ है, कल सबके 10-10 आ रहे थे। सेवेंटीन हो गए, और कोई ज्वाइन कर रहा है? हैंड रेस कर लो अगर कोई अभी ट्राई कर रहा है तो, अदरवाइज वी बी स्टार्टिंग ऑफ। ओके, वी आर वेटिंग। प्रोसीजर सेम रहेगा, क्वेश्चन मेरी स्क्रीन पे दिखेगा तो स्प्लिट कर लेना, आंसर तुम अपने सिस्टम पे दोगे ऑब्वियसली।
एक मिसिंग है बस। वाह सब आ गए कुछ दिन, क्या बात है। सुजल ने ज्वाइन कर लिया है हैंड रेस में आपका। आ गए आई थिंक सब, है ना? शुड आई वेट? कोई भी रह रहा है तो प्लीज एक बार हैंड रेस कर लो। आई एम स्टार्टिंग। सिर्फ एक ही रह रहा है आई थिंक, बाकी सब आ गए हैं। 2 मिनट और वेट करते हैं फिर स्टार्ट कर देंगे। आई थिंक भानु ने हैंड रेस किया हुआ था, वो आया नहीं अभी तक। हाँ उसका हैंड भी डाउन है। स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक। ऑल द बेस्ट गाइस। Which of the following is a relational operator? Comparison relational. बहुत बढ़िया। ये कंपेयर करता है कि दोनों नंबर्स इक्वल है नहीं, हमने अभी पढ़ा। ठीक है, दिव्या इज ऑन द टॉप। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द एक्सप्रेशन 15 मॉड्यूलस 4। इसका रिजल्ट बताना है। 15 मॉड्यूलस 4। Okay, that's good. टाइम की वजह से लीडर बोर्ड में काफी फ्लक्चुएशन आ जाते हैं। अनुराग पांडे इज ऑन द टॉप नाउ। गुड। वैलिड रेंज ऑफ कैर डेटा टाइप, उसकी वैलिड रेंज बतानी है हमें। एक्चुअली इस क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ हो गई। ये -128 से +127 तक आना था। रियली सॉरी यार, ये क्वेश्चन बनाते हुए कुछ गलती हुई है, इसका ग्रेस मार्क मिल जाएगा। एक्चुअली टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी, -128 से स्टार्ट होना था। हाँ इसका ग्रेस मार्क मिलेगा, बट स्टिल सबने बताओ यार 15 लोगों ने यही टिक किया, अच्छी बात है। चलो सॉरी फॉर दैट क्वेश्चन। कूल अरिहंत इज ऑन द टॉप नाउ। बहुत बढ़िया। Which of the following are manipulators? फॉर्मेटिंग के लिए यूज होते हैं जो। मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है ये, मल्टीपल करेक्ट आंसर है इसके, so, ध्यान से। इसके तीनों ऑप्शंस करेक्ट थे, एंड एल, सेट प्रिसीजन एंड सेट डब्ल्यू। बढ़िया, मैक्सिमम लोगों ने ठीक ही किया है। लीडर बोर्ड फिर से बदला। अनुराग पांडे ऑन द टॉप नाउ। बढ़िया। आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। टाइम है 30 सेकेंड है, अच्छे से देखो और बताओ।
सेम कोड हमने लिखा है आज। Ten seconds left. अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, मैक्सिमम लोगों को समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, Arihant has again managed to come on the top. Which of the following is primitive data type? सिंगल भी हो सकता है, मल्टी करेक्ट भी हो सकता है। Maximum have got it right. Char is a primitive data type. याद है सबको? बताओ, एक ही सेशन में याद होगा। अरिहंत फिर से लीडर बोर्ड के टॉप पे है। What is the correct way to declare a variable? Again मल्टी करेक्ट हो सकता है। Nice. Nice. क्या बात है। Next. Arihant. He is maintaining the lead. Nice. Which of the following data type gives a null value? Void. Nice. सबका ही सही है, कोई बात नहीं। सारी क्विज इजी है यार आप लोगों के लिए। Akshita is at top. चलो, last two questions. What is the size of float data type? Four bytes. टॉप पे कौन है अब? अनुराग पांडे। Anurag Pandey. Right. Cool. Last question. आखिरी मौका है। Which of the following is not a relational operator? Not a relational operator. पता नहीं। अरे बताओ। Okay. Great. 11 of you have got this answer correct. अब आएगा पोडियम। Let's see third rank पे कौन है। 10 out of 10 again. Jayan. अनुभव गुप्ता second. We have a winner. अनुराग Pandey. सबके 10 on 10 है, वो टाइम की वजह से थोड़ा सा हुआ, नॉट एन इशू, कोई नहीं, बढ़िया, लोगों को समझ आ रहा है। रनर अप, सॉरी यार मैंने नाम नहीं देखे, एक दिव्या एंड एक और रनर अप थे। कोई नहीं, इसका डेटा है मेरे पास, बढ़िया, आई गेट द रिजल्ट। सो कांग्रेचुलेशंस ऑल ऑफ Divya यू। and Shivam. सॉरी, Divya and Shivam runner दिव्या up. एंड शिवम रनर अप्स थे, हाँ ठीक है, ग्रेट। सो कांग्रेचुलेशंस एवरीवन, काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया सबने। आई होप आज समझ आया हो। सेशन लंबा था बट आई होप बोरिंग ना हो, वो एक अच्छा बेस बनाने के लिए इट्स इम्पॉर्टेंट। आगे हम कूल प्रोग्राम्स लिखेंगे, मज़ा आएगा, इम्प्लीमेंट करेंगे ये सब चीज़ें अच्छे से। नेक्स्ट वीक होगा अगला सेशन, भूलना मत, तब तक प्रैक्टिस करना, देखना अभी तक जितना सीखा है उससे क्या क्या किया जा सकता है। तुम्हें आज के सेशन की रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगी तो तुम उसको भी देख सकते हो। गौरव, कोई डाउट है? ये जो आखिरी क्वेश्चन था कंपैरिजन वाला, हाँ, इसमें थर्ड ऑप्शन था लेस देन मार्क,
एक लेस देन मार्क था, तो वो कंपैरिजन ऑपरेशन हम मतलब इसमें तो नहीं है, वो सिर्फ तो लेस देन के साथ इक्वल टू तो होना चाहिए। लेस देन इक्वल टू भी कंपैरिजन है और लेस देन भी कंपैरिजन है। कुछ डाउट है क्या अभी उसमें? नहीं नहीं ठीक है ठीक है। मैंने आई थिंक दिखाया था यहाँ पे। नहीं मेरे को अलग दिक्कत हो कोई, ठीक है। हाँ, इसमें इक्वल टू आंसर था जो कि एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। कूल। और किसी क्वेश्चन में कोई डाउट? एक क्वेश्चन के लिए वी आर रियली सॉरी, उसका आंसर गलत था, बट स्टिल काफी लोगों का सही है। ठीक है, तुक्के तो नहीं मार रहे तुम लोग? चलो कोई नहीं। सो हाँ, प्रैक्टिस जरूर करना, इन चीज़ों से तुम बहुत कुछ कर सकते हो। यू नो, अपना कैलकुलेटर बनाओ सिंपल सा, चीज़ें प्लस माइनस करो, इनपुट दो, और टेबल्स वगैरह लिख सकते हो प्रॉपर तरीके से, कुछ भी प्रिंट करा सकते हो एक फॉर्मेटेड वे में। देखना उसको ज़रूर, अदरवाइज भूल जाओगे नेक्स्ट सेशन तक, पॉइंट नहीं है। सो कोई भी डाउट हो आप सेशन को लेके, और कोई भी फीडबैक है आपके पास या क्वेश्चन को लेके कोई डाउट, 1 मिनट और है, हम पूछ सकते हो। बिल्कुल अनम्यूट ही कर लो। पीपीटी कोई और भी डाउट है या फिर कुछ भी है? अगर तुम्हें ये कोड की फाइल भी चाहिए जिसमें सब ऑपरेटर्स हैं इम्प्लीमेंट किए गए हैं तो बता देना, वो भी अवेलेबल हो जाएंगे।